मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि रिपोर्टर्स का एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा कोई पॉडकास्ट अभी कहीं पे भी नहीं है शायद, कि इसमें पर्टिकुलरली रिपोर्टर्स ही आते हैं और रिपोर्टर्स अपनी स्टोरी को डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे न्यूज लॉन्ड्री को तो रहते ही हैं, हम बाहर के जो रिपोर्टर्स हैं उनकी कोई अच्छी स्टोरी होती है उनको ही बुलाते हैं। If one quality that the present generation, which I feel that has changed from our time, they are giving themselves more importance than to the story. This is because of social media. They become the story. they themselves love to become a story. Persistent होना पड़ता है रिपोर्टर को कि अगर कोई सोर्स कल्टिवेट करना है आपको बार बार मिलना पड़ेगा, इवन इफ स्टोरी मिले या ना मिले, बट एटलीस्ट मे बी आपको पता है कि वो बहुत बड़ा सोर्स है या उसके पास काफ़ी खबरें हैं। जैसे अगर वो मना करे तो भी एक बार मैसेज का आंसर नहीं कर रहा है तो कॉल करना पड़ेगा, कॉल नहीं कर रहा तो मैसेज करना पड़ेगा। जब आप नए नए होते हैं ना तो आपको आइडेंटिटी क्राइसिस का एक वो रहता है ना कि मुझे कोई जानता नहीं, और रिपोर्टर जब हम बनते हैं तो एक वो होता है कि हमको कोई जाने। तो मैं बहुत एक्टिव रहता था, मतलब फेसबुक पे दिन भर में 10 पोस्ट लिखना, मतलब 4 जगह कमेंट करना। फिर एक दौर आया जब मैं समझा कि यहाँ मैं जो कमेंट कर रहा हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ, ये मेरा एक समय ख़राब हो रहा है। लेकिन मेरे साथ तो ये हुआ कि दो मतलब इंडस्ट्री के 2 अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में मुझे मतलब मेरा सिलेक्शन होने के बाद मुझे रिजेक्ट कर दिया मेरा फेसबुक प्रोफाइल देख। I throw a challenge to all of you. Just do a story as an unknown person, put it on Facebook. A good story speaks itself. Please understand. You are such a lucky bunch of journalists that you have got platform. Good story speaks for itself. Publicity अपने आप हो जाएगी। आप करो तो सही, आप एक स्टोरी तो करो, कैसे वायरल होगी देखना आप। ये जो असेंबली इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स हैं, इसका लोकसभा इलेक्शंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें कई चीज़ें हैं। ये जो इलेक्शन में, इसमें आपका प्रोपोगेंडा है, इसमें लोकल इश्यूज हैं, हाँ आई वॉन्ट से कि डेवलपमेंट भी इशू है, ठीक है। इसमें आपका ईडी भी है, छत्तीसगढ़ में ईडी ने काफी अच्छा काम किया, आपका इनकम टैक्स भी है। Order. Hello and welcome to Reporters Without Order. Today we are recording our 300th episode. This is a special episode, and joining in the studio are all the entire News Laundry's editorial team, along with our editor-in-chief Raman Kirpal. And today I'll be hosting this along with my colleague Basant Kumar. Hello Basant. Hello. So Raman sir, will start this with you because you're the senior most person. And one question I have for you is that what do you like the most, your job as a reporter or your job as an editor? No, first of all, this is not the entire editorial team. Editorial team is much bigger. You are still left with some reporters outside and also the people who are on the desk. Yeah. Okay. And of course, the production part is there also editorial in a way. Okay. We are 55 member strong team. Okay. Now, having said that, see, a reporter remains a reporter throughout his life. I mean, anything that comes in front of me or anything, if I'm talking to you, I'm talking to anyone. So that inquisitive attitude, that questioning and, that curiosity, it stays there. The moment these things die, you end as a reporter. So I think even when you become an editor, reporting is something which stays with you, and if you are not reporting yourself, you come up with your own story ideas, and you are chasing stories with the reporters in the field. So, and when you are reading the story, then again you are contributing to it. So I think reporting always stays, and I love myself to be a reporter. But you still haven't answered my question. What? Your job as a reporter or your job as an editor? Which one you like the most? So that's what I said. Even when I am an editor, that reporter, my being as a reporter, it stays with me. And liking part of it, I liked my inning as a reporter, and I had a pretty long inning. And even as an editor, I'm enjoying reporting through you guys. So that is it. So I have my lows and ups, so which you see it in the field, in the newsroom. So I keep talking about it in editorial meetings, and
I'm unhappy most of the time. And I would like to stay unhappy so that you guys keep coming up with some good stories. I hope it doesn't turn into another editorial meeting. No, not. तो ये हमारा 300वां एपिसोड है और 300 एपिसोड पूरे करने में काफ़ी समय लगता है। मुझे याद है मैं और प्रतीक सर रिपोर्टर में यहाँ पुराने हैं जो पॉडकास्ट में RW में पहले आए होंगे। तो चेरी अग्रवाल हमारी पहली होस्ट हुआ करती थी और उसके बाद स्निग्धा शर्मा आई, उसके बाद हम रिपोर्टर्स आए। तो इस पॉडकास्ट में हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी स्टोरी पे बात तो करेंगे ही, थोड़ा रिपोर्टर्स जो नए लोग आ रहे हैं, मैं मतलब मेरा करियर बहुत लंबा नहीं हुआ लेकिन अभी मैं देखता हूँ तो लोकप्रियता के पीछे काफ़ी जनता भाग रही है। तो रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, कैसे करना चाहिए, सर और प्रतीक सर तमाम लोगों से हम उस पर भी थोड़ा बात करेंगे ताकि जो नए लोग, जो नए जर्नलिज्म में आने वाले लोग हैं, उनको भी थोड़ा फ़ायदा हो, थोड़ा वो जाने कि कैसे करना चाहिए। तो मतलब शुरू करते प्रतीक सर, आपको RWO का कौन सा एपिसोड याद है और आपको कैसा लगा था जब पहली बार आपको इनवाइट किया गया था? तो फर्स्ट टाइम RWO के शो में तब आया था जब मैं न्यूज लॉन्ड्री में काम नहीं करता था। अच्छा। तब एक कोरेगांव भीमा का एक इंसिडेंट हुआ था, पूरा जो शुरू हुआ था ना, तब मैंने 3-4 स्टोरीज करी थी उसके ऊपर। तब फिर उसके बेसिस पे मेरे को बुलाया गया था, तो वो स्टोरी को देखते हुए तब आई थिंक चेरी तब होस्ट करती थी उस शो को। बाकी ऐसा तो मतलब काफी RWO के बहुत सारे शोज हुए हैं जिसमें मैंने और अपन सबने भी अटेंड किया है। बट ये एक अलग प्लेटफॉर्म है, मतलब मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि रिपोर्टर्स का एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा कोई पॉडकास्ट अभी कहीं पे भी नहीं है शायद, कि इसमें पर्टिकुलरली रिपोर्टर्स ही आते हैं और रिपोर्टर्स अपनी स्टोरी को डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे न्यूज लॉन्ड्री को तो रहते ही हैं, हम बाहर के जो रिपोर्टर्स हैं जिनकी कोई अच्छी स्टोरी होती है उनको ही बुलाते हैं। तो ये थोड़ा सा एक अलग प्लेटफॉर्म लगता है मेरे को। और कई बार ऐसे होता है कि बहुत सारे रिपोर्टर हैं वो एक अच्छा फील करते हैं जब हम उनको कॉल करते हैं कि इस हफ्ते आपकी स्टोरी आई, आप आए हमसे बात करें। जब मैं होस्ट करने लगा तो कई बार लोगों को अच्छा फील होता है कि अच्छा रिपोर्टर्स विदाउट मतलब RWO में हम आए हैं। लेकिन अब बात शुरू करते हैं जो हम लोगों ने शुरू किया था। सर, रिपोर्टिंग को लेके बहुत ज़्यादा एक वो बना हुआ है कि रिपोर्टिंग बहुत अच्छा है। आप रिपोर्टिंग को कैसे आप देखते हैं, कैसा पेशा है या कैसा काम है, थोड़ा अगर बताएं। अगर आप देखें जो रैंकिंग आती है ना जॉब, डिफ़िकल्ट जॉब्स, उसमें तो जो फर्स्ट जॉब, जो सबसे डिफ़िकल्ट जॉब कहा जाता है वो है ऑयल रिग की जॉब। ठीक है, ऑयल रिग में सबसे डिफ़िकल्ट जॉब कहा जाता है कि जो लोग भी ऑयल रिग्स पे काम कर रहे हैं वो अपनी फैमिली से अलग रह रहे हैं और बीच समुंदर में एक जहाज़ पे वो लोग काम कर रहे हैं। मुझे याद है ये फ्रंट पेज पे कहीं स्टोरी आई थी और रिपोर्टिंग वाज रैंक्ड एज नंबर 2 द मोस्ट डिफ़िकल्ट जॉब। किसी से इन्फॉर्मेशन निकालना इज़ नॉट एन ईजी थिंग। आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है आपको, और दिन पे दिन ये डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, लेकिन आसान भी होता जा रहा है क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है ना। सोशल मीडिया के थ्रू भी आप स्टोरीज ढूंढते हैं। तो रिपोर्टिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट जॉब है। इसमें आप शुरुआत करते हो नीचे स्तर से, फिर धीरे धीरे अपने आप को स्पेशलाइज करते हो और सभी का आकर्षण रिपोर्टिंग की तरफ इसलिए मोस्टली होता है क्योंकि आपकी विजिबिलिटी, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, प्रिंट मीडिया में आपकी बायलाइन और वीडियो में आप खुद होते हैं। ठीक है, तो और पॉडकास्ट में, और मतलब कि आपको जो लोग इंटरेक्ट करना चाहते हैं लोगों से जो काफ़ी, तो ये मतलब कि ये नहीं कि जब रिपोर्टर बनने की ख्वाहिश सब में होती है, ये नहीं कि हर कोई सक्सेसफुल भी हो जाए, ऐसा भी नहीं है। मेरे ख्याल से एक ये रीज़न है, लेकिन जो डेस्क जॉब है वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। इक्वली क्या, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें भी और मैंने देखा है कि कोई अगर डेस्क से रिपोर्टिंग में आए या रिपोर्टर से डेस्क में आए तो ये उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है। ये सब मतलब कि डेस्क का जॉब क्या होता है, बेसिकली आपने एक कहानी लिखी, वो कहानी डेस्क के पास गई तो डेस्क उसमें से आपको बताता है अच्छे तरीके से कि भाई ये कहानी में ये गैप्स हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो आप ये इन्फॉर्मेशन और लेकर आइए, है ना। तो आई थिंक दोनों जॉब्स इम्पोर्टेंट है। रिपोर्टर्स बेसिकली विजिबिलिटी के लिए लोग ज़्यादातर रिपोर्टिंग में जाना चाहते हैं। So you started your career with the Patriot in 1989. I was going through your LinkedIn and I found that. What attracted you to the reporting's job?
it was completely an accident that I am a reporter today. Okay, I was into my higher studies. I did my post graduation from Delhi University. Then I passed my exam in JNU for MPhil and PhD, and I started pursuing my MPhil and PhD. So there was a circumstance at home. My father passed away, and then I had to take up a job. There was no breadwinner. So I had to take up my mother got a job on compassionate ground in my father's office, which was a government office. And so I had to take up a job. So I didn't know what to do, frankly speaking. So somebody suggested, because you are into studies, so maybe the media is a good, because in our times, there were no private jobs. There were mostly the government jobs, right? So that is when they said reporting, this journalism. So I was studying in JNU. I was pursuing my MPhil. Then I did a course in Bharatiya Vidya Bhavan. But before that, an interesting story is I had to take up a job immediately. So all the offices used to be at ITO. So I went to this Patriot office, and Patriot office was the first building. It used to be known as Link House. Today it is called Patriot House. So I went there and I said I want a job. He said, they asked me कि भाई आप क्या कर सकते हो? मैंने कहा जी मैं ये एडिट पेज है ये लिख सकता हूँ. so पहले जाते ही मैंने एडिट पेज में लिखने का, तो मेरी तब यूँ ऐसे करके देखे, मुस्कुराए और चले. मैं फिर अगले कहते हाँ हम आपको कॉल करेंगे. फिर मैं अगले में गया, तीसरे में गया, चौथे में गया, पांचवें में गया, सब जगह मैंने यही बोला ये एडिट पेज कर सकते, क्योंकि एज स्टूडेंट्स वी यूज्ड टू रीड एडिट पेज. We never used to read news much, so edit page we used to read. तो एडिट देख के हमने कहा कि यार यही लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें एनालिटिकल होता है और हम भी पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट था. तो पॉलिटिक्स इज समथिंग विच वाज वेरी डियर टू अस. तो ये सब करते हुए फिर हमने मतलब कि कहीं नौकरी मिली नहीं. टाइम्स ऑफ इंडिया कहीं कोई नौकरी नहीं मिली. तो 6 महीना फिर हमने फ्रीलांस किया. तो उसके बाद मैंने कहा ये लाइफ ही बहुत ख़राब है यार, कुछ सर्टेनिटी नहीं है. तो 6 महीने के बाद किसी ने मुझे पहला चांस दिया. आफ्टर रीडिंग माय स्टोरीज, तो किसी ने मुझे पहला चांस दिया पैट्रियट में. वो मिस्टर जॉन दयाल, हु इज़ अ बिशप नाउ आई थिंक समवेयर. ही वाज ब्यूरो चीफ, but main guy was somebody else. And Mr. Panoli used to be the news editor. So that's how it happened. And so it was sheer accident. When I became reporter, yes, I took to reporting very naturally. It was a very natural transition into a reporter. That curiosity and that zeal to सिस्टम के अगेंस्ट थोड़ा होता था. उस समय सिस्टम में कौन था? कांग्रेस थी, है ना. तो उनके अगेंस्ट, क्योंकि कुछ भी ठीक आसपास जो भी सराउंडिंग है, चाहे वो सैनिटेशन को ले लो आप, चाहे वो क्या नाम ट्रांसपोर्ट को ले लो, और तुम कोई आर्ट एंड कल्चर के जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी एक्सेसिबिलिटी को ले लो. आई एम टॉकिंग ऑफ 1989. तो कुछ भी नहीं था. तो ऑब्वियसली आप बरस पड़े उसके ऊपर. तो फिर वो एक नेचुरली आया, और नेचुरली फिर मैं वो स्टोरी एक नेचुरल ये आया कि जो भी मेरी स्टोरी होनी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दे, यूनिक हो, अलग हो. और तो वो एक नेचुरल सेंस आया. तो आई स्टार्टेड लाइकिंग माई जॉब अ लॉट. और उसके बाद फिर मैंने कभी मुड़ के देखा नहीं. जर्नलिस्ट के लिए सर, उस समय आपके टाइम जब आपने स्टार्ट किया रिपोर्टिंग, तो व्हाट वर द एसेंशियल टूल्स फॉर अ रिपोर्टर? अभी तो जैसे फ़ोन है हमारा, सोशल मीडिया है, उसके अकाउंट्स हैं, उस पर देखना. तो उस समय आपके 90s में, 89 में, उसमें रिपोर्टर्स के एसेंशियल टूल्स क्या क्या हुआ करते थे? हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फट गूगल मार लेंगे. मान लीजिए हम किसी विधानसभा में हैं, यहाँ का पुराना रिकॉर्ड क्या है, मैं 2 एक मिनट एग्जांपल लेता हूँ. हाउ वी यूज्ड टू कवर इलेक्शंस. वी विल पिक अप, से दिस इज
2024 election. So we will take out one by one the newspapers of 2019. Okay, एक महीने के papers. And we will started going through them. कि in 2019 what had happened. So we will read Times of India, Hindustan Times. So likewise, एक महीने के papers सारे. You need to go through all those papers. So वो पूरे papers देख के उसके बाद एक उसमें as I said कि I took naturally to in 1989 I used to be interested only in raw data. So I'll cull out that raw data and then I'll interpret my way. I mean, so much so that even the previous reports have not interpreted those data that way. So I used to interpret it my way. I used to look at those data as raw data and interpret it that way. So वो पूरा का पूरा देख के उसके बाद you hit the field. And that is why I think we were very strong in field reporting. Extremely strong, because we, in the name of the tools, you didn't have Google, you didn't have social media. These are the tools that you have. We had very little guidance from the bosses also. The amount of talking that I do with you guys नहीं था हमारे टाइम पे, कुछ नहीं था, तो बिल्कुल भी नहीं था. तो वो मतलब हमें खुद ही डेटा, वो जैसे मैंने कहा ना, डेटा का अप्रोच मेरा शुरू से था. तो उसी से फिर मैंने धीरे धीरे वो दैट बिकम्स टूल इनटू योर हैंड एंड देन यू गो फर्दर इन द फील्ड एंड देन यू स्टार्ट. यस, शुरू में ऐसा लगता था कि वी आर क्रूसेडर्स, बट ग्रेजुअली वी स्टार्टेड फॉलोइंग इन लाइन कि भाई हम रिपोर्टर्स हैं, क्रूसेडर्स नहीं हैं. तो हमें कोई दुनिया चेंज नहीं करनी है, हमें रिपोर्टिंग करनी है और दोनों साइड्स देनी है. ऐसे था. सर आपने जैसे बोला कि बॉसेस का गाइडेंस नहीं होता, आपने तो बहुत सारे बॉसेस के अंदर काम किए हैं. आउटलुक से शेखर गुप्ता से, लाइक किसके साथ आपका मतलब एक्सपीरियंस आपको लगता है कि I had the same question. हाँ, मतलब कि एज एन obvious. बॉस whom do you look forward? नहीं, see, there were all kind of bosses, but I think two stand out. Two bosses stand out. One, I'll say Shekhar Gupta for sure. Shekhar Gupta, his sheer sense of reporting, his source of information immense, and he used to feed us with information. He was very good at it. Okay, and he also was extremely helpful, in making us as a reporter, because he used to send us at the drop of a hat. इतना मतलब समय पैसे की भी तंगी हो या कुछ भी हो, उन्होंने किया, because he was the CEO also later of the paper, Indian Express की बात कर रहा हूँ मैं. तो वो he used to send us out, और फिर वो अगर देखता है कि अगर if I am strong in the field, so he would send me all over. तो वो एक roving correspondent टाइप का बन जाते हैं. तो आई थिंक एक तो शेखर गुप्ता फॉर श्योर, एंड सेकंड इज विनोद मेहता. Everybody takes him. Vinod Mehta was my first boss when I stepped out of Patriot and I joined Pioneer. Pioneer. Pioneer was a craze at that time, 1992, 1994. It was a craze. It was just started at that time, I think 1989. तो बाकी I mean he was also extremely good, and I remember there was I did a story, and this was on a ballot paper story. The ballot papers were taken out. There was one strong man of Bulandshahr, I'm forgetting his name. He was accused in Bhati murder case, I think. So that person was contesting, and that ballot paper I sneaked out one, and I gave it to the desk along with my story. And my desk was a little lazy. They did the story and they threw away that ballot paper. And you cannot throw, that's a state government property, and we are telling that this is how the ballot papers were taken out. And these people they put stamp, and the entire election was rigged. This is a story I am doing.
they have given the ballot paper number, the ballot paper is missing. And at that time, a case was registered against me that I stole the ballot paper. Okay. So it was Vinod Mehta. I mean, when the police came to the office to arrest me or to caution me, whatever, then Vinod Mehta was there. He just didn't let them enter the office. And he supported me. And he was a real supporter of the reporters. And for the first time, I got such a congenial atmosphere. So I learned a lot from him. And beautiful days of reporting. I mean, a time when we only used to think of a report, nothing else in life. I mean, that's the most important thing that, existed. You think those this times. has degraded now the quality of reporters? No, you can't. I will not paint, the generation. If I say कि भाई ये generation ऐसी है तो सारे के सारे ऐसे हैं, ऐसा नहीं है. हमारे टाइम पे भी कई लोग थे. जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते थे, जो मैं बहुत कम जाता था, मैं ज़्यादा नहीं जाता था, सिर्फ कभी कभी थोड़ा सा इतना कि किसी से, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस से स्टोरी तो मिलती नहीं. प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सिर्फ कि ऐसे मदन लाल खुराना ये सब जान जाए कि मैं कौन हूँ, ताकि मुझे उनसे अगर कोई कोट लेना हो तो उसमें ईजी हो, तो उसके लिए जाते थे. तो वहाँ पे कई लोग इतने एम्बैरेसिंग क्वेश्चन पूछते थे, तो यू यूज्ड टू फील रन अवे. आई मीन यू ऑलवेज फेल्ट सो एम्बैरेस्ड, that you are a reporter, you are in journalism and you are standing next to them. So अपने एग्जिस्टेंस पे ही थोड़ा सा डाउट होना शुरू होता था. तो हमारे टाइम पे भी ऐसा था, ऐसा अभी भी. आई थिंक इफ वन क्वालिटी that the present generation, which I feel that has changed from our time, they are giving themselves more importance than to the story. This is because of social media. They become the story. They themselves are they love want to to. become a story. I tell you, in 90s and even in 2000 and 2014, I had won the Ramnath Goenka. So I had a very active career of reporting, but and people will know my name. Maybe they haven't seen me. They will know my name because of my bylines, but they have not. So we used to keep a very low profile. Even today, I keep a very low profile. I'll give 1,000 stories. I've done stories where I've given bylines to others. That is to hide my sources. And I've not taken the byline. Because to me, the end result is important. The important story should come out. People should know the truth. So that is how I think this is how we worked. But in present days, many reporters, they give themselves more importance. तो ये मुझे लगता है बस यही. अभी तो सबके पास स्मार्टफोन्स है, मोबाइल फोन्स है. इफ़ यू वांट टू टेक ए कोट फ्रॉम समवन, यू जस्ट कॉल देम अप. 90s में देयर वर नो मोबाइल फोन्स, राइट? सो हाउ वुड यू कांटेक्ट पेजर देम? होता था. पेजर तो हमारे अंदर के लिए होता था. एंड स्मार्ट वी यूज्ड टू कॉल फ्रॉम आवर हेडफोन लैंडलाइन. सर, मैं ये जानना चाहता था कि उस दौर में जब आपने जर्नलिज्म शुरू किया था और जैसे अभी क्या होता है कि बहुत सारी स्टोरी आती हैं, तो मतलब मुझे लगता है कि कई बार स्टोरियों का असर नहीं होता, ना गवर्नमेंट पे कुछ फ़र्क पड़ता है, ना कुछ उसके अलावा. और दूसरी बात, कुछ ऐसे भी पत्रकार हैं जिनको जो है अरेस्ट कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर दिया जाता है रिपोर्टिंग के चलते, स्टोरी के चलते, UAPA लगा दिया जाता है, या फिर IT एक्ट की धाराओं में उनको सोशल मीडिया पे लिखने के लिए बंद कर दिया जाता है. तो क्या उस समय और इस समय में क्या ये फ़र्क है कि उस समय जैसे अभी गिरफ्तारियाँ हो जाती हैं, तो उस समय भी क्या इतना प्रेशर था लोगों पे जितना अभी है? मैं तो कहूँगा कि अभी जो जितना प्रेशर ज़्यादा हो उतना अच्छा है. हाँ, मैं तो ये कहूँगा जितना प्रेशर अभी जो सिचुएशन है, ये तो बहुत कंड्यूसिव है जर्नलिज्म के लिए. आप तो मतलब कि ये कहना कि इंफॉर्मेशन तो कहीं ना, देखिए हर इंफॉर्मेशन पे 100 दरवाजे होते हैं, 99 बंद होंगे, एक हमेशा खुला रहेगा. वो रिपोर्टर की आंख है, वो जो उसको भाप सके और उस दरवाजे से घुस नहीं तो के. क्या पहले भी ऐसी रिपोर्टिंग के चलते जेल में डाल दिया जाता था? तो जेल में अगर अभी डाल देते हैं तो मुझे कई जगह तो ये भी लगता है कि ठीक है, गलत एक इंटिमिडेशन है. इंटिमिडेशन तो मैंने कहा ना, मेरे अगेंस्ट बुलंदशहर में मेरे अगेंस्ट भी 90s में 94 था शायद, 1995, तो वो FIR हुई थी. तब भी हुई थी. तो ऐसा नहीं है, आपकी स्टोरी फुल प्रूफ होनी चाहिए.
आपको दूसरे रीज़न से तंग कर सकते हैं, तो ये तो हमारा ये तो जॉब है कि एक हैज़र्ड है ये तो है। लेकिन आप अपनी स्टोरी को कैसे फुल प्रूफ कर सकते हैं वो आपको देखना है। स्टोरी को फुल प्रूफ करना बहुत ज़रूरी है, तो ताकि आपको ऊपर कोई आपको गिरेबान से पकड़ ना सके, तो वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो आप स्टोरी की तरह करिए, कैंपेन मत करिए। जो आप अक्सर हमें ग्राउंड पे जब हम लोग हाँ, होते हैं तो कहते हाँ। हैं। रमन सर से हम काफ़ी बातचीत करेंगे क्योंकि सर उस दौर में जर्नलिज्म कर रहे थे जब देश में काफ़ी कुछ बदल रहा था। ग्लोबलाइजेशन का दौर था, बाबरी मस्जिद, मंडल, सरकारें 1 साल 2 साल बाद बदल जा रही थी, तो हम और डिटेल में बात करेंगे। आपने शुरू में एक बात कही कि खबर निकालने के लिए हमें काफ़ी कोशिश करनी होती है, और अभी आखिरी में कहा कि 100 दरवाजे होते हैं, एक दरवाज़ा खुला रहता है। तो मैं अपने तमाम साथियों से और ख़ासकर प्रतीक सर से, क्योंकि मुझे याद है मीडिया रंबल चल रहा था और हम लोग फर्स्ट या सेकंड रो में बैठे हुए थे, और एक छत्तीसगढ़ के मामले में एक डीयू के प्रोफेसर को ज़मानत मिली, तो प्रतीक सर मेरे बगल में थे। मैंने कहा सर उनको ज़मानत मिल गई, वो लंबे समय से जेल में थे, साईं बाबा। तो मैंने कहा ज़मानत मिल गई, 2 मिनट भी नहीं हुआ होगा ठीक से कि प्रतीक सर ने वो जजमेंट मुझे दिखाया कि देखिए जजमेंट आ गया, मैं बाहर जा रहा हूँ पढ़ने, फिर आके बैठते के बात करते हैं। तो सोर्स बनाने के लिए, या आपका सोर्स कैसे स्टैब्लिश होगा, कोई कैसे भरोसा करेगा, आप थोड़ा अगर हमें बताएं, जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी, जो हम जैसे लोग हैं उनके लिए भी, और सोर्स पे कैसे भरोसा करें, क्योंकि मैं कल या परसों कुछ पढ़ रहा था तो 2-3 जगह क्रॉस चेक करना है, तो आप कैसे करते हैं, और बाकी तमाम साथी भी अपना इस पे राय रखेंगे। सोर्स बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है घूमना। मतलब जब तक हम घूमेंगे नहीं, आई मीन भले ही अपन स्टोरी हो या ना हो, लेकिन हम कम से कम 3-2-4 लोगों से ऐसे रोज अगर मुलाकात नहीं करेंगे, भले ही मतलब अपन को पता है कि कभी बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे क्राइम बीट है, मतलब जो मैंने काफी ज्यादा कवर किया, तो मैं उसके बता रहा हूँ कि आपको बहुत बार होगा कि ऐसे ही मिलने जाना पड़ेगा बंदे से, पुलिस ऑफिसर हो, डीसीपी हो, कांस्टेबल हो, उनके साथ चाय पीने बैठना पड़ेगा। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि आपको स्टोरी नहीं मिलती, लेकिन जब आपका एक नेटवर्क बन जाता है तो फिर स्टोरी ऑटोमेटिकली, जैसे कोई सी बीट हो, क्राइम हो, पॉलिटिक्स हो, जब तक अगर हम लोगों से मिलेंगे नहीं, जब तक हम ग्राउंड वर्क नहीं करेंगे, तो कभी सोर्स नहीं बन सकते। और कुछ सोर्स बहुत तरीके के होते हैं, कुछ ऐसे सोर्स बनते हैं जो अपना, उनका जो भी एजेंडा है वो आपके थ्रू उसको एम्प्लॉय करने की कोशिश करेंगे, तो वो वैसे तो बहुत ईजी है सोर्स, लेकिन अगर अच्छे सोर्स बनाने हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा ग्राउंड वर्क की जरूरत है, जो मतलब मुझे लगता है। तो मेरा मतलब, मेरी राय ये है कि अगर सोर्स बनाना है तो आपको बहुत ज्यादा लोगों से मिलना जुलना, घूमना, मतलब रात हो तो भी, अगर रात को भी घूमना पड़ा है तो घूमिए, दिन में आपको कब घूमना है घूमिए, जो भी आप जितना भी लोगों से मिल सकते हैं उतना मिलिए, तब आपका आपका नेटवर्क भी बनेगा और सोर्स भी बनेगा। कोई एक अनुभव जो कोई डॉक्यूमेंट आपने निकाला हो, जिस हद तक बता सकें, क्योंकि बहुत सारे आप जब कोई डॉक्यूमेंट निकालना होता है तो बहुत सारी बुद्धि रिपोर्टर लगाते हैं, कोई एक अनुभव जो निकाल के आपको फील हुआ कि ये मैंने कर दिया, कोई ऐसा? ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बात, मतलब जितना नेटवर्क बन जाता है ना अपना, उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट सब बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन उस नेटवर्क को बनाने के लिए पहले मेहनत करनी पड़ती है। डॉक्यूमेंट निकालना मतलब मतलब मैं तो बहुत छोटा रिपोर्टर हूँ, लेकिन बहुत बड़े बड़े रिपोर्टर दुनिया में, रमन सर खुद एक बहुत बड़ा, जिन्होंने मतलब वो अरे सीबीआई वाला जो सर ने जो स्टोरी किया था, जिसमें वो जो क्या नाम है, वो Delegates. जो रंजीत, नहीं क्या नाम था उनका, रंजीत, सीबीआई डायरेक्टर, Yeah. रंजीत ही नाम था ना? सिन्हा हाँ, सिन्हा रंजीत सिन्हा। सिन्हा सर बता रहे थे, वो स्टोरी करते वक्त, मतलब वो आई थिंक वो जो वहाँ पे एक आई थिंक बस स्टॉप था, तो वहां बैठ के वो लोग ऑब्जर्व करते थे। तो डॉक्यूमेंट्स तो नेटवर्क से निकल जाते हैं, जितना मेरे को समझ में आया है कि अगर आपका अच्छा स्ट्रांग नेटवर्क हो, अच्छा आपके सोर्सेज हो हर जगह पे, तो नेटवर्क तो डॉक्यूमेंट तो निकाल सकते हो। और दूसरा एक चीज और है, अभी आज के जमाने में ओसिंट है, जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस नेटवर्क, आई मीन जो हम देखते हैं, अगर आपको इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर, इसको ढंग से थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट, जो भी सोशल मीडिया हो या जो भी, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो आजकल इंटरनेट पे मिल जाती है, अगर आपको उसके अंदर जाना, उसकी तह तक पहुंचना आता हो, ओसेंट के थ्रू अगर आप सीख सकते हैं, कोर्सेज होते हैं उसके बहुत सारे, तो वो भी एक बहुत मतलब एज ए रिपोर्टर हम लोग के लिए एक अच्छी चीज है, हमको सीखना चाहिए, क्योंकि उसके थ्रू हम बहुत डिटेल में निकाल, मतलब खुद से भी पहुंच सकते हैं वहां तक। आपकी जो सोर्स वाला था उसमें मैं एक बार आपसे जानना चाहता था कि जैसे आप बोल रहे हैं कि मिलना चाहिए, और मिलने के बाद जैसे कि हमेशा स्टोरी नहीं मिलते हैं, लेकिन मिलते रहना चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें हम लोग कुछ कुछ चीज़ें मिलते हैं। लेकिन हम लोग अक्सर जब जाते हैं, ऐसा एक फेस होते हैं कि बिकॉज हम लोग एक ऑनलाइन मीडिया है
और देयर आर लॉट ऑफ न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट, एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट, जिन लोग का ऑलरेडी एक अच्छा एक्सेस बन जाते हैं, तो जो नया है उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ ये छोटा मोटा कुछ निकाल लो, दे गिव अस थोड़ा बहुत कुछ या कुछ प्रोपोगेंडा भी होते हैं, एंड देन दे वांट अस टू पब्लिश। और जब ये हम लोग एक बार नहीं करते हैं, 2 बार नहीं करते, तो उन लोग के साथ भी एक वो हो जाता है कि अरे इससे तो काम नहीं होता है, मतलब उनको भी एक मतलब इट्स अ काइंड ऑफ क्या बोला, गिव एंड टेक रिलेशन, दिस लाइक यू नो सोर्सेस ट्राई टू मेंटेन विथ ए रिपोर्टर। तो इस सब सिचुएशन को कैसे टैकल करना होता है, या हाउ टू टैकल दिस काइंड ऑफ ए सिचुएशन, रमन सर भी बोल सकते हैं क्योंकि दोनों का एक्सपीरियंस। मेरा तो मानना है कि पहली बात तो जो बंदा अगर सोर्स में गिव एंड टेक कर रहा है तो उसको तो सोर्स बनाओ ही मत। मतलब हम जर्नलिज्म कर रहे हैं, कोई मतलब मैं मानता हूँ कि कभी कभी सोर्सेस को पैसे खिलाने पड़ते हैं, मतलब ऐसे नहीं जैसे सर, स्टोरी करो, हम तुमको प्रोपेगेंडा नहीं, नहीं। अपने टाइप का, अपने मकसद के लिए स्टोरी देगा, वो आप नहीं करेंगे तो बोलेगा कि अगली स्टोरी हम तुमको क्यों दें। क्यों तो कभी ऐसे बंदे को बिल्कुल सोर्स नहीं बनाना। जी हो सकता है वो उस दफ्तर का बिल्कुल टॉप शॉट ऑफिसर हो, लेकिन हो सकता है उस दफ्तर में एक ऐसा प्यून भी मिल जाएगा अपने को, या कोई ऐसा दूसरे लेवल का उससे जूनियर लेवल का ऑफिसर मिल जाएगा जो आपको स्टोरी देगा भी, और उसको आप एज अ सोर्स इनकलकेट कर सकते हो। बजाय जरूरी नहीं है कि हमको बिल्कुल टॉप ऑफिसर को सोर्स इनकलकेट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में सब सोचते हैं कि चलो भाई डीन से दोस्ती हो, मेरा डायरेक्टर से दोस्ती हो। कोई ये नहीं सोचता कि वो एम्बुलेंस ड्राइवर से मेरी दोस्ती हो। एम्बुलेंस ड्राइवर से अगर दोस्ती होगी तो वो तो दिन भर लेके जा रहा है ना लाशें इधर उधर, या कोई फॉर एग्जाम्पल पोस्टमार्टम वाला बंदा है, या कोई और जूनियर लेवल का बंदा है। और मतलब मैं एक एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये, पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा अगर कोई सोर्स अच्छे बनते हैं तो वो होते हैं जूनियर रैंक के ऑफिसर। उनसे बढ़िया कोई सोर्स होगा नहीं। तो सोर्स उसको डेवलप करना चाहिए जो सोर्स हो। ये तो मतलब वो ये तो ऐसा हो गया कि भाई मैं, तू मेरी बात नहीं छापेगा तो मैं तेरे को खबर नहीं बताऊंगा, तो ऐसे लोगों को तो नहीं बनाना चाहिए सोर्स। That's what I feel. रमन सर, आप इसमें क्या मतलब ये जो रिलेशन No, no, networking, making a network is a very difficult task and it takes a lot of time. And bringing somebody on your mental wavelength is not an easy task. Okay, you need to be diplomatic at times. And so that networking, and you need to be extremely persistent. You would be rejected 10 times, but you need to go 11 times again. Okay, your ego should not come in between, and you keep chasing till that person comes on your mental wavelength. Okay, so also you will realize that, so first of all, I mean, I'm talking of those persons whom you feel that are going to be relevant for the information. Not everybody is, I know, I mean, many good friends. I've got a very good IPS friend, even today. But when it comes to the stories, I never asked because I knew that it's not going to come. So that sense is extremely important. So I never cultivated it, but my friendship continues with them. Then another friend in Parliament, whom I can use for chut-mut information, chota-mota, but expecting a story from him, no. I knew that. But that he's there in the network, but I've kept it for some that small information, small nuggets of information I need. So I'll just ask him to get me those information. Or if I want to gain an entry into Parliament, so through that person I'll just gain an entry into Parliament. So this is how I'll do it. But then there are some IAS officers, they hardly give you information, but if you cultivate them, if you bring them on your mental wavelength, and that is a long process, not 1 month, 2 months, 3 months, 6 months, or a year, and then you start getting good information from them also. I mean, so the same goes with the army also. It's very difficult to get stories out of army. So there also you have army headquarters. You need to study. You need to do your homework properly. First, you need to judge a person. And judge a person, you cannot judge a person just by meeting 1, 2, 3, 4 times. But before that, you need to make a report card on him. Suppose करो ये बसंत मेरा सोर्स कल्टीवेट करना है, तो बसंत जो भी है, तो इसके बारे में मैं पहले पूरा अब तो सोशल मीडिया से निकाल लेंगे, पहले हम अखबार से निकाला करते थे कि वो आदमी कौन है, कौन से बैच का ऑफिसर है, उसके बैच में और कौन से ऑफिसर हैं जिनको मैं जानता हूँ, ठीक है, इसको मैं कैसे अप्रोच कर सकता हूँ, खुद डायरेक्ट अप्रोच करूँ या किसी और के थ्रू अप्रोच करूँ, और उस पहली मीटिंग में
वो मेरे को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है वो जज करना बहुत ज़रूरी है. नेटवर्किंग इज़ अ वेरी इस ऑल द रिएक्शन एंड द काउंटर रिएक्शन, बस उसी के थ्रू आप समझ सकते हैं और उसको नेटवर्किंग कर सकते हैं. बट आई थिंक अभी तो बहुत काफ़ी चीज़ें ईजी हो गई हैं सोशल मीडिया के कारण. करेक्ट. बहुत ईजी हो गई है. सम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया इज ट्रिमेंडस सोर्स. मतलब कि सब सोर्सों का बाप है सोशल मीडिया. क्योंकि कोई भी रिएक्ट कर रहा है, चाहे वो कोई ट्रोलिंग कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, वो रिएक्शन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, आपको स्टोरी मिल जाएगी. जो उसमें जो छिपा हुआ इन बिटवीन द लाइंस पढ़ोगे ना, इन बिटवीन द लाइंस पढ़ना पड़ता है और आपको स्टोरी मिलेगी. शिव, आपका क्या कहना है? मेरा तो ये कहना है कि परसिस्टेंट होना पड़ता है रिपोर्टर को, कि अगर कोई सोर्स कल्टीवेट करना है आपको बार बार मिलना पड़ेगा. इवन इफ, जैसे प्रतीक ने बोला कि अगर स्टोरी मिले या ना मिले, बट एटलीस्ट मे बी आपको पता है कि वो बहुत बड़ा सोर्स है या उसके पास काफ़ी खबरें हैं. जैसे मान लीजिए कि एनवायरनमेंट पे कोई है, तो कोई IAFS ऑफिसर है आप उनसे मिले हैं या एक बार दो बार कोट लिया है, तो ऐसे ही उनके ऑफिस में जाके एक बार दो बार मिल सकते हैं चाय पे. तो आपको बार बार मिलना पड़ेगा उनको. अगर वो मना करे तो भी एक बार मैसेज का आंसर नहीं कर रहा है तो कॉल करना पड़ेगा, कॉल नहीं कर रहा तो मैसेज करना पड़ेगा. तो परसिस्टेंस इज द की, आई थिंक. ऐसे नाराज भी हो जाता है सोर्स. अभी रमन सर ने एक बात बोली थी कि अपना ईगो ना, हाँ, ईगो साइड नाराज हो गया तो क्योंकि हो सकता है तुमको 4 घंटे बाहर तो, किसी हाँ. SP के ऑफिस के बाहर या ACP के ऑफिस के बाहर या बैठना पड़ेगा. तो ऐसा नहीं है कि प्रेम टाइप का मामला है ना. नहीं, अगर किसी ने एक बार ना कर दिया कि मैं बात नहीं करूंगा इस पे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इससे बात ही नहीं करेंगे कभी जिंदगी में. तो वो ईगो को साइड में करना पड़ता है सर उसमें. बाकी अभी तो ना सोर्सेज से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका आई फॉर न्यूज़, आई फॉर रिपोर्टिंग. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं है, ये तहलका में था. मैं हमारी कवर स्टोरी थी, तो एक प्रेस नोट आया. अब मैंने कैसे पढ़ी, ये दिस इज द स्टोरी विच आई प्रपोज्ड, आइडिया स्टोरी कम्प्लीटली. एक प्रेस नोट आया CBI से अपने प्रेज में कि हमने 78% ऑफ द केसेस में कन्विक्शन दिलाया. 78% का. तो मेरी स्टोरी क्या थी बताओ? किस में नहीं दिलाया या किसको दिलाया? नहीं, 78% में केसेस में वो सक्सेस मिली है उनको. 78% बहुत ज़्यादा हाई रेट है. बाकी 22% का क्या हुआ? हाँ, वही में बाकी 22% कौन से थे? तो कौन क्या थे? उसमें? 78% छोटे छोटे केसेस, 22% में मुलायम सिंह यादव, ठीक है, मायावती, ये सब बड़े बड़े केसेस थे. तो वो 22% केसेस थे जो सोल्व नहीं हुए. वो किस स्टेज पे है, उनका पूरा का पूरा कवर स्टोरी थी तहलका में. तो एक आई फॉर रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है. आप मतलब कि कई स्टोरीज तो ऐसे ही कैच कर लेंगे, फिर तो ये बाकी लोग बाद में आते हैं. लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं. हाँ, नेटवर्किंग तो फिर आई हाँ. वो तो होगी जब आप फील्ड में जाएंगे, हिट करेंगे. उसके बाद आपका कितना परसिस्टेंटली आप उसको रखेंगे अपने पास, वो है. लेकिन एक न्यूज़, आई फॉर न्यूज़ इज और नोज फॉर न्यूज़ इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. वो एक ऐसा भी है ना कि आप किस प्रकार की स्टोरीज कर रहे हैं. आप अगर अच्छी स्टोरीज कर रहे हैं, किसी मान लीजिए कि होम मिनिस्ट्री पे कर रहे हैं या एनवायरनमेंट पे कर रहे हैं या कोल मिनिस्ट्री पे कर रहे हैं, तो आप ओवर पीरियड ऑफ टाइम अच्छी स्टोरीज करते हैं, तो जो लोग मैटर करते हैं, स्टेक होल्डर्स हैं किसी मिनिस्ट्री में, वो भी आपको रिकग्नाइज करते हैं कि हाँ ये बंदा है, कर रहा है, एंड इफ ही कॉल्स मी आई विल रिस्पॉन्ड. So you keep talking, not just you, but everyone keeps talking about that that the reporter should have an eye for news or nose for news. You have spent like over 3 decades in journalism. Do you think this is something which can be cultivated, or you just have it? That person. Some people have it, and it can easily be cultivated. I won't say that it can't be cultivated. I mean, it will really be a very bad case in which a person is not able to cultivate. It can be cultivated, but unfortunately, why it is not getting cultivated? Because in our time, the regime of a reporter was very different. And the regime of a reporter is extremely different these days. Now, you are directly hitting the Supreme Court without even going to the lower courts. Correct. You are directly hitting the HRD minister without even covering a school and school kind of education and this thing, college education. You are directly hitting the this say
Ministry of Housing and all, without mapping the land which DDA handles. So you have not been cultivated right from the grassroots. We guys did MCD, Municipal Corporation of Delhi. In Indian Express had in reporting had in Bombay. BMC was major thing. The crime, the local crime. Okay, but you are again directly hitting MHA. So your cultivation has not happened. You have not begun with the grassroots reporting. If you grow as a grassroots reporter, it will be very easy to do MHA, very easy to do the national level kind of beats. So that's the major problem with present day reporters. So इसमें don't you think that the new media, it is also not focused in the new media that has emerged over the years. इनका भी एक सारे new media is also not focusing on the local reporting. Like except for the newspapers, and even I don't think news channels also have a MCD beat. Like they have a Delhi beat maybe for the Delhi administration, governance and the politics, but like नया सब लोग local reporting is almost dying, like except for a few news portals and the newspapers. Local, It won't die. Like hyper local. No. See, ideally we should have beats, but the new media has its own compulsions. Where is our money coming from? We don't make money through advertisements. Correct. Okay, our money is coming directly from the subscription. So there you have set some certain priorities. And also the kind of reporters we hire, they are either the beginners, the trainees, or they have spent a year or two because they are cheaper. So you can bring them in and you can train them, and even if they leave, then other set of reporters will come in and we will train them again. So that's what we have been doing in the new media because of the money constraint. So having said that, I mean, that's a new situation. Ideally, I said, I mean, a reporter should get, but having said that, nobody has stopped you. Why it is dying? Because you guys are not doing any stories. नहीं, I'm not talking. Listen, I am optimistic. Even after 30, I think this is the best time for journalism. If there is if we are getting arrested, if everything is happening, we should also respond back very strongly by doing strong stories. But no campaign. We don't need any campaign. We need solid, straight ground reports. So you said like we need to do like bold reporting, and with that, my next question is that you have worked for over, I think, 10 media houses, from Patriot, Pioneer, Express, IndiaBroad.com, Deccan Chronicle, India Today, NDTV, Network 18, DNA, like all media house. Times of India also. Times of India also. But you keep talking about Express every time, every morning. So we have our like WhatsApp group for our like viewers. Like we have our NL Reporters WhatsApp group in which I think at 8 o'clock in the morning, Raman sir sends pictures Today I sent Times of India. But 9 out of 10 times it's Express story, which you sent us in the group. TOI is an exception. And TOI is an exception. And you have had 2 innings at Express. 12 years. 12 years, wow. 11, 12 years. Out of 35 years, 12 years. What, in your opinion, what makes Express so brave and Express stand out? If you just look at the tradition of Express, I mean, from 70s, when Antule का एक crime था. Antule was Maharashtra Chief Minister. A.R. Antule, sir. A.R. Antule. Okay, and Shori was the editor. He brought him down. He had to resign as a CM. So Express during emergency had a then I was a student of political science, so we used to read Express. So there also I appreciated Express a hell of a lot as a reader. And then I got a chance to work with it. I think there I enjoyed the reporting the most because I learnt reporting, the threads of reporting, from of course with Vinod Mehta.
It was almost the similar. Vinod Mehta was more congenial. Vinod Mehta is not giving us information. We had to bring information on our own. Okay, but Vinod Mehta will make it very easy. He'll give you the atmosphere for a good, good working atmosphere to come up with good stories. Okay, which is sadly missing, and because right now you have lots of pressure. You have, but even then we used to do 2 to 3 stories a day, whether it is press note based or whatever. There also, I mean, as a reporter, my tendency was that, yeah, everybody is going to carry press notes, so I need to give something extra. So Express, why I talk about Express? Because Express come up with very good stories even today. And I think Times of India and HT come up with some good, city reports. So that also, I mean, I read, even today I read 7 papers. So Express stories are different. See, look at the variety of reporting that they have done. Take an example today. I don't know whether you guys have read it, Express today. So Express has come up with a story, beautiful story, that aspirational districts in these 5 states which went to the election, how many seats BJP has won. So aspirational districts and how much they had won last in 2018. So that comparison, that you need to think of that, and then you need to interpret. This is I called raw data and interpreting that data. So this is a very good story. But this is still, they have done a skeletal story. You can take it forward. You guys, I mean, one can go to those aspirational districts and can dig out further that the kind of money that went into why the voting behavior changed. These are very good academically and even in terms of information. That's one story which stands out from rest of the newspaper, because they have done, all of them have done analytical stories. So this is the story which Express has done. They do lots of RTI stories. And they have a very wide network of reporters. I think perhaps bigger than Times of India. They have a very good systematic way of reporting. Their structures are very strong. Okay. Their reporting structure, their desk, their editorial heads like Raj Kamal Jha and all, they're very solid. They come up with, they feed very good ideas to these reporters. In fact, whenever we discuss, I tell you guys that you do it first, otherwise Express will do it. Yeah. And this is the way of thinking. The curiosity, the way of thinking. आप क्यूरियस रहते हैं हर समय, आप किसी चीज़ को भी कैसे पढ़ना है, कोई न्यूज़ आती है उसमें भी आप खबर ढूंढते रहते हैं, कोई पिक्चर आती है उसमें आप खबर ढूंढते रहते हैं, आपका पूरा एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है वहाँ पे एक्सप्रेस में. वही मैं कोशिश करता हूँ यहाँ कल्टिवेट करने की, तभी मैं सुबह सुबह से भेजता हूँ. ठीक है, वो एक है. और दूसरा ये है कि अग्रेसिवनेस बहुत सिखाई जाती है वहाँ पे. सिखाई क्या जाती है, नेचुरल अग्रेशन रिपोर्टर्स में होता है. हाँ, वो तो बहुत ज़रूरी है ना. अपनी बीट पे, वहाँ तो बीट्स है ना, तो आप इस बीट पे आना ही नहीं आने देना. यहाँ पे अगर बीट्स कर दिया जाए तो अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है ना. अब एमसीडी में कोई एमसीडी 2-3 लोग कवर करते हैं, क्राइम 3-4 लोग कवर करते हैं. अब कोई स्टोरी मिस हुई तो उनकी क्लास लग जाएगी, है ना. तो पॉलिटिक्स के भी अलग अलग रिपोर्टर हैं. हाँ, पॉलिटिक्स के भी अलग अलग, कांग्रेस का अलग, हाँ, सारी पार्टी के पार्लियामेंट जाने के अलग होते हैं. बिल्कुल. ठीक है, ये तो ऐसी तो नेटवर्किंग है. तो एक्सप्रेस में एटीट्यूड टुवर्ड्स रिपोर्टिंग, मतलब कि आपकी, आई एम सॉरी टू से, बट हाँ, लाइफ सिर्फ रिपोर्टिंग बन के रह जाती है. मतलब कि रिपोर्टर नहीं, रिपोर्टिंग हर समय आप रिपोर्ट, मतलब कि सुबह 5 बजे उठ के आप न्यूज़पेपर का वेट करना और अपनी स्टोरी फ्रंट पेज में देखना, तो ये एक चार्म था जो एक्सप्रेस में हमेशा रहा करता था. फ्रंट पेज में स्टोरी देख. 90s में जो रिपोर्टर्स थे उनका जो दिनचर्या है, सुबह से लेकर शाम तक कैसे वो स्टार्ट करते थे अपना दिन? और डोंट आस्क. नहीं, मतलब कि we can leave some of the parts, the gray side of it. But yes, means your hunt begins in the morning till you get one story which can go on page 1. Simple. I mean, I'll tell you in one simple sentence. I mean, this is hunt. जब मैंने कहा शुरू हो जाए
चाहे उसमें आपकी जो भी दिनचर्या हो, चाहे ब्रेकफास्ट हो, नहाना हो, चाहे खाना हो, कुछ भी हो, वो अफेक्ट हो रहा है, अफेक्ट होता है, लेकिन आप को स्टोरी लेकर आनी है। आप इलेक्शन करने जा रहे हैं, हम तो आप अभी तो आप कंप्यूटर लेके आते हैं आराम से ऐसे, तो हम तो टाइपराइटर उठा के लेके आते थे। टाइपराइटर पूरा पेपर का बंडल उठा के लेके आते थे और वहाँ से स्टोरी करके फिर उसको फैक्स करते थे। हम अक्सर इस पॉडकास्ट में जो रिपोर्टर्स आते हैं उनकी स्टोरी पे बात करते हैं, लेकिन इस बार अभी तक जो आप लोगों ने सुना, अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, सबका अनुभव आ रहा है, रमन सर का, शिव का, अवधेश का, प्रत्युष का, प्रतीक सर का, क्योंकि ये हमारा 300वां एपिसोड है और अभी तक हमने आपको ये याद नहीं दिलाया है कि, और आप सब जानते भी हैं कि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता। हम आप सबके सहयोग से काम करते हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने चुनाव कवर किया है। यहाँ पे 3 रिपोर्टर मौजूद हैं जो ग्राउंड पे थे। प्रतीक सर मध्य प्रदेश में थे, शिव राजस्थान में, मैं छत्तीसगढ़ में, एंड तनिष्का मिजोरम में। हाँ, लेकिन अभी तनिष्का हाँ, यहाँ तनिष्का मौजूद यहाँ नहीं नहीं है, तो इसलिए हमने तनिष्का का जिक्र नहीं किया। तो हम लोग जो भी रिपोर्ट्स करते हैं और अभी भी जिन रिपोर्ट्स पे हम तमाम लोग काम कर रहे हैं, वो सब आपके सहयोग से होता है। तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें, और सिर्फ खुद ना सब्सक्राइब करें, वो डायलॉग है ना कि खुद भी करें, 3 लोगों और से कराएं, उनसे बोले वो 3 को कराएं, ताकि हम और ज़्यादा रिपोर्ट्स और हम ला सकें। जैसे रमन सर कह रहे थे कई अखबारों में कि ज़्यादा रिपोर्टर होते हैं, हमारे यहाँ भी ज़्यादा रिपोर्टर हों, ताकि अलग अलग राज्यों से खबरें आपको पढ़ने को मिले। अब हम थोड़ा सा स्टोरी पे बात कर लेते हैं। राजस्थान में जो नतीजे आए शिव, क्या आपको अंदाज़ा था? इससे पिछले वाला जो RWO था उसमें मैंने कहा था कि एक क्लोज कॉन्टेस्ट होगा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। उसमें कहा था कि बीजेपी थोड़ा आगे दिख रही है, मेरे को बीजेपी को एडवांटेज है। बट मेरे दिमाग में था, फिर मैं काफ़ी लोगों से बात भी किया जो वहाँ के लोग थे, तो वो सब कुछ इन द हाइंडसाइट आप सोचते हैं ना इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद। मैं उस समय ऐसा कोई एंटी इनकम्बेंसी वेव देखा नहीं वहाँ पे राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ। तो मुझे लगा कि ये राजस्थान इस बार जो 25 साल का जो ट्रेडिशन है रिवॉल्विंग डोर वाला, उसको बक कर सकती है, उसको इस बार हो सकता है कांग्रेस वापस आ जाए। लेकिन रिजल्ट्स मेनली आई थिंक आई वाज सरप्राइज बाय द रिजल्ट्स कि इतना बड़ा गैप, मतलब 115 और 69 इतना बड़ा गैप। पर भाजपा के 2 बड़े लीडर हार गए हैं, मतलब और भी हारे हैं, पर सतीश पूनिया जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे और राजेंद्र राठौर जो शायद नेता तारानगर से नेता प्रतिपक्ष थे लीडर विधानसभा में, ऑपोजिशन इन द ये दोनों टॉप लीडर थे और एक टाइम पे तो मुख्यमंत्री के रेस में भी थे। सतीश पूनिया ने कल एक बहुत इमोशनल पोस्ट भी लिखा कि मैं आमेर की जनता की सेवा अब नहीं कर पाऊंगा, हालांकि आज उन्होंने बैलेंस किया है। और कहा जा रहा है कि इनको पार्टी के लोगों ने ही हरवाया है, कुछ कास्ट पॉलिटिक्स इसको लेकर। आप इनकी हार को कैसे देखते हैं? और गहलोत के कई मंत्री हारे हैं, मतलब सिविल लाइन से तो एक जर्नलिस्ट ही जीते हैं, गोपाल शर्मा, जिन पे हमने कुछ महीने पहले एडवर्टाइजमेंट पे स्टोरी की थी। वो चुनाव सांगानेर प्रताप सिंह खाचरियावास लड़ रहे थे उनके खिलाफ, उनके खिलाफ वो जीत गए अच्छे वोटों से। खाचरियावास वहाँ से सिविल लाइन से थे कांग्रेस के, वो हार गए और गोपाल शर्मा जी जीते वहाँ से। लेकिन राजेंद्र राठौड़ की बात है, तारानगर से पहले वो मेरे ख्याल से किसी और सीट से लड़ते थे, इस बार उनका सीट बदला है, तो इस कारण से वो हो सकता है कि उन्होंने वो सीट हार गए हों। लेकिन ये बड़े लीडरों का हारना राजस्थान में कोई बड़ी बात नहीं है। एक बहुत बड़ा था कि सीपी जोशी जब 2008 या 13 में वसुंधरा थी, 8 में सीपी जोशी 1 वोट से हार गए थे और उनको एक सीएम चेहरे के रूप में देखा जा रहा था। तो कोई बड़ी बात नहीं बड़े लीडरों का हारना। वो ऐसा है कि अगर आप ग्राउंड पे रहेंगे नहीं, राठौड़ का अलग है क्योंकि वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में थे नहीं, वो बहुत पहले लड़े थे उस कॉन्स्टिट्यूंसी से। लेकिन बड़ी बात नहीं है कि बड़े लीडर हार जाएं। अगर आपका जो कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ आपका जुड़ाव नहीं है, आप 5 साल में एक बार जा रहे हैं वहाँ पे, और तो लोगों से जुड़ाव बहुत ज़रूरी है राजस्थान में, किसी भी स्टेट में, राजस्थान की बात नहीं है, तो इसलिए वो हार गए। प्रतीक सर, आपसे कि आपके यहाँ के जो फिल्म समीक्षक थे, फुल टाइम पार्ट टाइम गृह मंत्री, वो चुनाव हार गए और मध्य प्रदेश का जो नतीजा रहा वो काफ़ी हैरान करने वाला था सबको, क्योंकि जो एग्जिट पोल आ रहे थे उसमें कांग्रेस को लीड मिल रहा था। एक आध एग्जिट पोल को छोड़ दिया जाए तो ग्राउंड पे भी जो जर्नलिस्ट, मैं भी भोपाल था 2 दिन आपके साथ, जो ग्राउंड पे जर्नलिस्ट मिल रहे थे उनका भी कुछ और कहना था। क्या रहा वजह? मतलब मैं ऑलमोस्ट 18-20 दिन था मध्य प्रदेश में, लेकिन एक्चुअल में उस वक्त
जो एक लहर वाली बात दिखती है ना, कि मतलब नहीं पूरी लहर तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ये था कि भाई अब इस मतलब ये गवर्नमेंट नहीं चाहिए, मतलब ये हर जगह दिख रहा था, लोगों से बात करने में भी, वहाँ के जो जर्नलिस्ट, लोकल जर्नलिस्ट, उनमें भी हर तरीके के लोगों से दिख रहा था। और ये जो रिजल्ट आया है, ये तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, मतलब हम सोचें कि 10-20 सीट का खेल बात अलग है, ये तो ऑलमोस्ट 100 सीट से ऊपर निकाला है बीजेपी ने। तो अभी लाडली बहना का गेम चेंजर कितना, ये तो वो जो पूरा जो पोस्टपोल जितना परसेंटेज आएगा उसमें समझ में आएगा। लेकिन वो एक योजना ने बहुत कुछ बदला है, मतलब मतलब बोलते हैं ना, एक परसेप्शन बदला है वहां पे। और शिवराज सिंह चौहान ने वाकई उस इलेक्शन के दौरान बहुत मेहनत करी। उन्होंने वो बहुत जम के कैंपेन करते थे, और कांग्रेस में इस तरफ का वो दिख नहीं रहा था। लेकिन अभी मैंने एक स्टोरी किया था, तो मैं कुछ जर्नलिस्ट से बात कर रहा था, तो उसमें वो बता रहे थे कि जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कि जैसे सपा है, बसपा है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, विंद पार्टी है, ये सब जो छोटी मोटी जो जो अपने कैंडिडेट्स खड़ी कर रही, जो पार्टी थी मध्य प्रदेश में, ये चाह रही थी कांग्रेस के साथ अलायंस करने का। और इनका वोटिंग परसेंटेज सब मिला के 13% के करीब गया है। तो बोले कांग्रेस ने बहुत सारी चीजों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था, कि यार नहीं हम तो जीत ही लेंगे टाइप। तो वो एक बहुत उल्टा पड़ गया। दूसरा, अब जो मोदी फैक्टर की बात अभी अभी इलेक्शन के बाद हो रही है, क्योंकि तीनों स्टेट में बीजेपी आ गई है, तो वो एक हो सकता है अनडन चीज हो। लेकिन जो मेरे को लगता है, अगर इलेक्शन जिताने में बहुत बड़ा रोल रहा है, तो शिवराज सिंह चौहान का बहुत ही मेजर रोल रहा है। उन्होंने ये चुनाव को पलट दिया पूरा। जी जी भाव एक क्वेश्चन है, राजस्थान और अगर मध्य प्रदेश को कंपेयर करें, राजस्थान में अशोक गहलोत ने काफ़ी प्रो वुमेन वेलफेयर स्कीम्स, मतलब सब्सिडाइज गैस सिलेंडर हाँ, हो बहुत गया काम या किया राशन की, अगर जैसे लाडली बहना अगर मध्य प्रदेश में काम किया है, तो वैसे ही जो वेलफेयर स्कीम्स है राजस्थान में काम क्यों नहीं किया? एक जो फैक्टर है कि मोदी फैक्टर वो है जो भाजपा को दोनों राज्यों में जीत दिला के लाई है, या कैसे देखते हैं इसको? आई मीन मोदी फैक्टर सबसे मैं इसमें सोचने लगा कि अब तो तीनों स्टेट में आ गई। इसके पहले ना मुझे मोदी फैक्टर दिख रहा था, क्योंकि मुझे उस वक्त इलेक्शन में जितने दिन भी था मध्य प्रदेश में, मैं उस वक्त एक्चुअल में शिवराज सिंह चौहान दिखता था हर जगह। वो मतलब उनका दिख रहा था कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, कैंपेनिंग से लेके हर उसमें बहुत एक्टिव, मतलब बहुत ही उसमें वो फॉर्म में थे उस वक्त, जबकि उनको पूरा साइडलाइन किया होता उसके बावजूद भी। शिवराज सिंह चौहान की इमेज आप मान लो कुछ भी, वो मतलब कैसा है ना, कि वो एमपी मध्य प्रदेश की पब्लिक से कोई अगर इमोशनली कनेक्ट कर सकते, कोई सा भी नेता हो, भले ही वो बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा बेहतर कोई इमोशनली कनेक्ट नहीं कर सकता। क्योंकि वो बिल्कुल, और वो पूरा अपने हम्बल फेज में आ गए थे पूरा। जैसे पहले शिवराज सिंह चौहान थे ना, जैसे बुलडोजर मामा वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो बुलडोजर मामा उनको समझ में आ गया पॉइंट के बाद कि ये जो इमेज है ये मेरे पे नहीं चलने वाली। तो वो वापस अपना पुराने फेज में, कि मतलब बोलते ना, एक रिक्वेस्ट करना, बिल्कुल इमोशनल कार्ड भी खेल देना, सब कर देना, एक बिल्कुल मार्मिक सही शब्द है, जमीनी मार्मिक मामा उस रूप में चले गए थे वो। बुलडोजर मामा टू मार्मिक मामा। लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, मतलब अब ये छत्तीसगढ़ में, अब पहले तो ये बताइए कि वहाँ चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? अभी तो काफी चुनाव कुछ जीतते जीतते पलट गया बिल्कुल, मतलब वही वही दिख रहा था। वही मतलब सोचिए कि जो सरगुजा इलाका है, जहाँ से टीएस सिंहदेव खुद चुनाव से पहले घोषणा करने लगे थे कि मैं यह आखिरी चुनाव में सीएम बनना चाहता हूँ, वो खुद हार गए 16 वोटों से। टीएस सिंहदेव आखिरी दौर में उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। पूरा सरगुजा साफ हो गया, 14 की 14 सीटें, और लास्ट टाइम वो कांग्रेस जीती थी, इस बार भाजपा जीत गई। समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। मतलब ग्राउंड पे आप 100 लोगों से 200 लोगों से बात करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में आप कितनों से बात करेंगे, 100-150। उसमें 50 लोग बोलते थे कांग्रेस, 50 लोग भाजपा, इस तरीके से। जो एक ये भी पूछना होता है ना हम रिपोर्टर्स को, कि आप क्या पिछले बार किसको वोट दिए थे। ये भी तो एक ट्रेंड है कि मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं जो कसम खाएंगे कि हम कांग्रेस को वोट देंगे, कसम खाएंगे कि हम भाजपा को वोट देंगे, चाहे कोई खड़ा हो, कोई हारे, कोई जीते, मतलब नहीं है। तो वो सब देख के लगता था कि कांग्रेस, मुझसे अवधेश ने पूछा था चुनाव रिजल्ट से एक दिन पहले क्या नतीजे होंगे, तो जो रिजल्ट आया है इसका उलट मेरा अनुमान था कि कांग्रेस 54-55, भाजपा 35-40 के बीच में रहेगी। तो ये सारे के सारे एग्जिट पोल्स का जो एनालिसिस किया था हमने, तो उसमें भी सारे के सारे एग्जिट पोल्स बता रहे थे कि कांग्रेस आएगी। कांग्रेस भी आत्मविश्वास में थी। हाँ। लेकिन 2-3 चीज़ें जो मैंने देखा उस वक्त लोगों की बातों में आके, मतलब लोगों से बात करके, एग्जिट पोल देख के, जर्नलिस्टों से बात करके, जो कई चीज़ें मिस हो जाती है कि आप इतने सारे अच्छा सुन लेंगे किसी पार्टी के बारे में, तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती है जो आप इग्नोर कर देते हैं। हो जाती है क्योंकि आपको 10 लोग कह रहे हैं ये आ रहा है, 2 सिचुएशन ऐसा दिख रहा है कि नहीं यार ऐसा नहीं होगा। 2-3 सिचुएशन मुझे दिखे थे। मैं था अंबिकापुर में, जहाँ से टीएस सिंहदेव चुनाव लड़ रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं। शाम के 6:30-7 बज रहे थे,
4 दिन बाद चुनाव था 17 को, कांग्रेस का दफ्तर बंद था शाम को 7 बजे। जो पार्टी चुनाव लड़ रही है सत्ता में, उसका दफ्तर 7 बजे कैसे बंद हो सकता है? उसके अलावा भाजपा ने राजस्थान छत्तीसगढ़ में, मैंने अपनी स्टोरी में भी जिक्र किया था, कम्युनल और जाति तो है ही छत्तीसगढ़ में, लेकिन कम्युनल हिस्सा जोड़ा। और आप देखिए उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ कि एक आदमी ईश्वर साहू, जिनके घर में 2 कमरे हैं, एक कमरे में दरवाज़ा नहीं, इतने गरीब हैं, उनकी एक बस मात्र आइडेंटिटी है उनके बेटे की, ये कम्युनल दंगे में डेथ हुई थी, हत्या कर दी गई थी। उनको बीजेपी ने टिकट दिया, किसके सामने? 7 बार के विधायक के सामने, साजा विधानसभा क्षेत्र से। रविंद्र चौबे उनकी माता जी, उनके पिता, मतलब उनका पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ के विधायक वहीं रहे हैं। वो एमपी जब मध्य प्रदेश में जब अर्जुन सिंह की सरकार थी, दिग्विजय सिंह की सरकार थी, उस वक्त भी मिनिस्टर थे, अभी भी भूपेश बघेल सरकार में मिनिस्टर थे। इतने पावरफुल मिनिस्टर को एक सामान्य से मजदूर ने हरा दिया, वो भी ठीक ठाक वोटों से। और आखिरी में प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा पूरा छा गया और अटल बिहारी वाजपेयी को भी लाया गया। तो उस वक्त बहुत सारी चीज़ें मिस हो रही थी। जब आप 10 लोग आपको कह रहे हैं कांग्रेस का अच्छा है, चाहे वो आम आदमी हो, जर्नलिस्ट हों, जो तमाम लोग हों, और 2-3 साइन ऐसे दिखते तो हमको लगता था 10 के आगे 2-3 तो कम ही होता है ना। तो वो मिस हुआ और नतीजा मुझे लगता है कि कांग्रेस ने, जो मेरी जितनी समझ है, कि भूपेश बघेल को चेहरा ना बना के भी एक गलती की थी, क्योंकि भूपेश बघेल काफ़ी ज़्यादा उधर एक्सेप्टेबल दिख रहे थे। सर आपसे एक क्वेश्चन है, ये जो असेंबली इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स हैं, इसका लोकसभा इलेक्शंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? State assembly elections, they are fought on local issues, mostly the local issues. This also, I mean, whatever we have discussed, I think we need a deeper understanding of the results that have come out. It might have surprised you as a reporter, because as a reporter you are the only reporter. There are 200 constituencies. You will not get time to go to all this. All of them, So I have often seen all political reporters eating their own words after the results come. So like we have done it here. But it requires a proper in-depth study. For example, if I take Rajasthan, Congress has rather gained votes than losing the votes. Percentage of votes they have gained. Okay, लेकिन बीजेपी ने इतना मोबिलाइजेशन अच्छा किया, या जो नई वोटें आई हैं, या वो सब स्टडी करना पड़ेगा. कांग्रेस Who were these new voters? मतलब कि it requires a deeper understanding of data before you say anything. तो मेरे ख्याल से इसमें कई चीज़ें हैं, ये जो इलेक्शन में, इसमें आपका प्रोपोगेंडा है, इसमें लोकल इश्यूज हैं, हाँ, आई वोंट से कि डेवलपमेंट भी इशू है, ठीक है, इसमें आपका क्या नाम, ये ईडी भी है, छत्तीसगढ़ में तो ईडी, हाँ, सीबीआई भी है, आपका इनकम टैक्स भी है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है. बट हैविंग सेड दैट, जब आप लोग भी, मैंने आप लोगों की वीडियोस देखी थी, आप जो भी क्वेश्चन करें तो वो कहते थे सेंटर में मोदी ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर कुछ बात करने लग सकते हैं. तो आई थिंक अभी 6 महीना इज़ नॉट अ स्मॉल टाइम. 6 महीने में कई चीज़ें चेंज हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं. तो उसमें डिफरेंटली प्ले करेगा. उसमें अगर सपोज करो फॉर एग्जांपल, ये इंडिया करके जो इनका ये ऑपरेशन ब्लॉक, अगर ये काम कर गया, ब्लॉक काम कर गया, इफ दे पिट जस्ट वन कैंडिडेट अगेंस्ट बीजेपी, थिंग्स विल चेंज. हर कंस्टिट्यूंसी में एक ही कैंडिडेट हो इंडिया का, तो एक हो और एक बीजेपी का, तब फर्क होगा. तो बहुत चीजें फैक्टर. सर आपको लगता है कि सुनील कानुगुलू का रोल थोड़ा कांग्रेस में बढ़ेगा या है? सुनील कानुगुलू जो कांग्रेस का स्ट्रेटेजिस्ट. एक बात और मैं बताऊं कि अगर कांग्रेस हारती, सॉरी बीजेपी हारती तीनों स्टेट, तो बीजेपी भी यही कहती ये तो लोकल है, ऊपर तो मोदी. लेकिन अभी वो जीत गए, इसलिए मोदी कर रहे हैं. मोदी तो वो तो अपने पॉलिटिक्स है. पॉलिटिक्स में हर कोई ऐसे फायदा उठा नहीं. फॉरगेट बीजेपी, इवन कांग्रेस विल डू द सेम, है ना. तो वो तो खैर होगा ही होगा. तो आई थिंक नेशनल पॉलिटिक्स अभी 6 महीने हैं. अभी किस ढंग से इंडिया शेप अप होती है इस 6 महीने में. आज ही कुछ 6 तारीख को उनकी मीटिंग होने वाली है, पर ममता बनर्जी ने कहा कि हम नहीं पाएंगे. सर लेकिन तेलंगाना का रिजल्ट को लेके जो आप बोल भी रहे थे, तेलंगाना में सुनील कानुगुलू ने एक अच्छा रोल प्ले, कर्नाटका की बात, ही डिलीवर्ड तेलंगाना आल्सो. पर मुझे हमेशा लगता है कि ये जो भी ये आजकल नया सिस्टम प्रशांत किशोर के आने के बाद शुरू हुआ, जो लीडर ग्राउंड पे मजबूत है वो आसानी से अपना चुनाव निकाल ले जाएगा.
तो आप कितना भी ये पैसे वैसे खर्च कर लें, आपका लीडर कौन कॉन्टेस्ट कर रहा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी क्या है, आप कैसे, और आपका पोलिंग बूथ बूथ पे मैनेजमेंट कैसा है, कैसा है। ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो जिस पे कांग्रेस एक टाइम पे बहुत अच्छी थी, जो अभी भाजपा है, अब भाजपा बहुत अच्छी है, बहुत Organization। अच्छी। तो ये थोड़ा स्टोरी पे बात हो गई। अब फिर से थोड़ा जर्नलिज्म पे हम रिपोर्टिंग पे बात करेंगे, क्योंकि ये स्पेशल शो है। और जब हम लोग, मैं और सुमेधा इसको और कैसे बात करेंगे, तो हमारा फोकस था कि जो नए लोग जर्नलिज्म में आना चाहते हैं उनको भी थोड़ा इससे जानकारी मिले। रमन सर आप भी, या प्रतीक सर आप भी, पॉपुलैरिटी से आपने बाद में भी कहा कि हम इम्पोर्टेंट नहीं है, स्टोरी इज़ इम्पोर्टेंट। थोड़ा दूर भागते हैं, मतलब भागते क्या, बचते हैं। लेकिन हमारे दौर में एक नई मतलब ये एक आइडेंटिटी को लेकर लोग काफ़ी सोशल मीडिया पे खबर बाद में आती है, रिपोर्टर कहाँ है वो हम फोटो डाल देते हैं कि यहाँ जा रहे हैं, ये वहाँ से तस्वीरें, लीड दो। मतलब मैंने और जर्नलिस्टों के बारे में, एडिटर्स के बारे में वो सुना कि कई अखबारों के, वो कहते हैं कि सोशल मीडिया से थोड़ा दूर ही रहो, काम के लिए जाओ वरना दूर रहो। इसमें अच्छा क्या है, बुरा क्या है आपकी नज़र में? लोकप्रिय होना बुरा क्यों है? आप अगर एक स्टोरी को हाँ प्रमोट कर रहे हैं हाँ तो वो ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे कर रहे हो कि अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ 5 मिनट पहले बम गिरा था, मतलब कि आप अपने आप को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दे रहे हैं, बम जो क्रेटर बना है वो उसको आप डिस्क्राइब कर नहीं रहे हैं, आप ये इम्पोर्टेंस, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि मैं इतना डेयरिंग रिपोर्टर हूँ कि मैं उस थोड़ा तो आजकल के उसमें ये वीडियो में ये ड्रामेटाइज करने का प्रचलन है, एवरीवन डज इट। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप सोशल मीडिया में भी रहें, हर जगह रहें, लेकिन आप एक स्टोरी को प्रमोट करें ना, अपने आप को प्रमोट क्यों कर रहे हैं? अगर इफ़ एक स्टोरी रिक्वायर करती है कि आप कहीं जा रहे हैं, उसको सोशल मीडिया में डालना जरूर, एक स्टोरी की रिक्वायरमेंट है ये, उसका इट विल वर्क लाइक ए प्रोमो फॉर द स्टोरी, यस डू इट। लेकिन अपने आप को आपको प्रमोट करने की क्या जरूरत है? स्टोरी शुड स्पीक इटसेल्फ। आप मतलब कि आप बड़बोले मत बने, स्टोरी को बड़बोला बनने दीजिए, है ना? तो यही है बस, सिंपल सा। मैंने बहुत कम शब्द में ये बात कहने की कोशिश। It's a major issue these days that reporters on social media, I think everyone can give a take on it. Like Pratyush, what do you think about it? How do you handle your I social don't media? tweet a lot. Sometimes I do. And one time Raman sir even scolded me for it because I tweeted something which I was not supposed to do, and I realized it immediately and deleted it. And but if you see, बात को क्लियर है। टाइमिंग मत पूछना। So basically, I never tweet like my personal beliefs or anything on Twitter or any other social media because I know कि people will judge me for my comments. And if I do a story on the same subject tomorrow, then people would say कि यार इसने तो ऐसे ट्वीट, इसका प्रोफाइल देखो। That we always do. हम खुद ही दूसरों का प्रोफाइल लेके जज करते हैं कि ये बंदा किसकी इंक्लाइन है। तो obviously if somebody check my profile, they get to know. So I am conscious about it. So I never tweet. And I often, if you check my profile, मैं stories ही भेजता था। एक टाइम पे Facebook में शेयर करते थे, अभी Twitter में करते हैं। And retweet ज़्यादा करते हैं ताकि मतलब मुझे अपना उसमें भी ज़्यादा कुछ इतना वो नहीं करना है प्रमोशन के। Because if I do something right, if the story hits right chord, then people will tweet. वो तो दिख जाता है। इनफैक्ट सोशल मीडिया तो ऐसी किताब है ना कि अगर आप रीट्वीट भी कर रहे हैं ना, उसमें भी आपका बायस दिख जाएगा। What kind of stories you are retweeting? Like नहीं, I do retweet only stories from my colleagues. If you can check, I don't retweet anything. I'm not accusing you of anything. मैं कह रहा हूँ एक जनरल बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कि उससे जब आपको कोई स्टडी करना चाहता है तो वो ये देखेगा आप किस टाइप की स्टोरी। बिल्कुल बिल्कुल सर, होते हैं। बट न्यू मीडिया के लिए एक ये कंपल्शन भी है ना। लेगेसी मीडिया वुड आस्क देयर रिपोर्टर्स नॉट टू बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, नॉट टू asking them not to show their bias, उनका क्या बिलीफ है, उनकी क्या आइडियोलॉजी है। बट न्यू मीडिया के लिए टू गेट आई बॉल्स, टू मेक श्योर मोर एंड मोर पीपल रीड योर स्टोरी। आपने कभी भी ऐसा होता है कि आपने अच्छी स्टोरी की है बट नॉट मेनी पीपल आर रीडिंग इट। आई थ्रो अ चैलेंज टू ऑल ऑफ यू, जस्ट डू अ स्टोरी एज एन अननोन पर्सन, पुट इट ऑन फेसबुक। अ गुड स्टोरी स्पीक्स इटसेल्फ, प्लीज अंडरस्टैंड। यू आर सच अ लकी बंच ऑफ जर्नलिस्ट that you have got platform, you have got this media platform. It's a very useful platform. Good story speaks for itself. Publicity अपने आप हो जाएगी। आप करो तो सही, आप एक स्टोरी तो करो, कैसे वायरल होगी देखना आप।
आप एज एन एनोनिमस कर दो, आप फेसबुक में या कहीं पे भी डाल दो, आप देखिए स्टोरी कैसे वायरल होती है। अच्छी स्टोरी बोलती है वो, नहीं चाहिए उसको कोई। मैं आई एम वेरी ट्रेडिशनल मे बी इन माई थिंकिंग, बट मुझे लगता है कि आज की तारीख में भी अगर मैं सोचूं कि मुझे एक ऐसी स्टोरी करनी है इन्वायरमेंट में या किसी भी फील्ड में, मैं कैटेगरीज देखूं कि रामनाथ गोयनका में क्या क्या कैटेगरीज हैं, और उसको बाद में वो स्टोरी चुपचाप कर लूं, मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप स्टोरी विल स्पीक। मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ कहीं डालने की भी जरूरत है। बस न्यूज़ लॉन्ड्री में छप गई या कहीं एक प्लेटफॉर्म पे छप गई, बस खत्म। एट दैट इफ आई एम नॉट पार्ट ऑफ न्यूज़ लॉन्ड्री, आई एम ऑल अलोन, और मैं अगर फेसबुक में छाप दूँ, इनफ फॉर मी, हो जाएगा काम। एक ही मतलब स्टोरी, गुड स्टोरी ऑलवेज स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। लेकिन सर आजकल तो ये ट्रेंड है कि कोई स्टोरी छपी तो 10 ग्रुप में भेजता है और लिखता भाई इसको शेयर कर देना वायरल कराने के लिए। आप भी भेजते हैं हमारे एक ग्रुप में। Vasant, what do you think about it? You've got the maximum number of followers amongst all of us. नहीं, मैं जब शुरू में आया था, इसमें I सच think I बोलना have the least followers. No, But sir. I'm not reporting on I it. have the Sir, least me, number. Pratyush and Shiva. मेरा तो सर 700 फॉलोअर्स है। हाँ, so मेरा I भी। have the 400 least followers. number of followers, मेरा 500 कुछ है। I have the least, I think. जब you शुरू are में आया था ना, 600 तो जब 400. आप नए होते हैं ना, तो आपको आइडेंटिटी क्राइसिस का एक वो रहता है ना कि मुझे कोई जानता नहीं। और रिपोर्टर जब हम बनते हैं तो एक वो होता है कि हमको कोई जाने। तो मैं बहुत एक्टिव रहता था, मतलब फेसबुक पे दिन भर में 10 पोस्ट लिखना, मतलब 4 जगह कमेंट करना। फिर एक दौर आया जब मैं समझा कि यहाँ मैं जो कमेंट कर रहा हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ, ये मेरा एक समय ख़राब हो रहा है कि मैं दिन भर में मुझे याद है हम लोग कहीं थे, मैं और आयुष, और वहाँ शायद सीए प्रोटेस्ट से किसी दौरान इंटरनेट 24 घंटे नहीं रहा। और 24 घंटे में जो एक होता है ना बेचैनी, फेसबुक चलाने की जो मेरी बेचैनी थी, वो मुझे लगा कि ये तो मुझे बीमार कर रही है। कि मतलब मुझे फेसबुक अगर आज को बंद हो जाए, वो तो एक टूल है, किसी दिन कुछ भी बंद हो सकता है, तो मेरा क्या होगा। फिर मैंने अपने आप को कहा, अभी मैं कुछ 8 महीने हो गए मैंने फेसबुक बंद कर रखा है। ट्विटर पे सिर्फ अपनी खबर डाल देता हूँ, या जो ग्रुप में, जैसे इसने बताया ग्रुप आता है तो किसी एक हम लोगों का ग्रुप है सब रिपोर्टर्स का, तो उसमें आता है कि प्लीज़ आरटी, तो आरटी कर देते हैं। मैं अपने ट्विटर को भी छोड़ दिया। और फिर एक होता है ना कि आप ग्राउंड पे जाते हैं तो आपकी विचारधारा, हर आदमी की अपनी विचारधारा होती है, उससे इग्नोर नहीं कर सकते। वो ट्विटर पे दिखेगा तो बहुत सारे लोग मना कर देते हैं बात करने से। बिल्कुल। उससे भी बचने का उपाय है कि थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहो, और मेंटल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। तो मैंने अब बहुत ही कम कर दिया है। अब इंस्टाग्राम पे कभी कभी रील देख लेता हूँ, बाकी कुछ नहीं करता। नहीं, रमन सर ने सही कहा कि अगर आप स्टोरी भी शेयर कर रहे हो, उसके साथ कुछ शब्द अगर लिख रहे हैं तो उससे ही पता चल जाता है कि मतलब आप किस साइड हैं। सर मेरे साथ ऐसा हुआ कि मतलब मैं भी सोशल मीडिया में एकदम आर्टिकल के बराबर अपना ओपिनियन दे देता था फेसबुक पे बहुत भयंकर लिखता था। लेकिन मेरे साथ तो ये हुआ कि दो मतलब इंडस्ट्री के 2 अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में मुझे मतलब मेरा सिलेक्शन होने के बाद मुझे रिजेक्ट कर दिया मेरा फेसबुक प्रोफाइल देख के। तो मुझे तो ये नुकसान उठाना पड़ा कि मतलब मैं इतना लिखता था कि मतलब सिलेक्शन हो गया, देखा भाई अपना जरा प्रोफाइल दिखाओ, जो साथ के दोस्त थे उन्होंने देखा तो संपादक ने देखा, बोले एक रिपोर्टर का एज ए रिपोर्टर आपका कोई रिलीजन नहीं है, आपकी कोई कास्ट नहीं सर, उसमें सर सिर्फ सवाल होते थे, सवाल मतलब जो मुद्दे चल रहे थे उसको ओपिनियन होता था, बाकी कुछ नहीं। जेंडर भी नहीं, ओपिनियन भी नहीं होना चाहिए ना भाई, कुछ भी नहीं। एज ए रिपोर्टर कुछ भी नहीं। आपके पास सामने एक इशू है, मतलब कि उसके बाद भी बायसेस आते हैं, ये नहीं कहता कि नहीं आते हैं, नोइंगली आ जाते हैं। लेकिन आप इस ढंग से अगर सोचेंगे और करेंगे और साथ में अपना एटीट्यूड ऐसा बनाएंगे कि आप ये कप देख रहे हैं, इसमें आप एक स्टोरी देख रहे हैं, आप इसमें एक स्टोरी देख रहे हैं, हर चीज़ में एक स्टोरी देख रहे हैं, और ऐसा आप करेंगे तो। और जी, जब आपको रिजेक्ट किया गया तो आपको मुक्तिबोध की कविता पढ़ देनी चाहिए थी। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सब। सर आप जेएनयू में तो मुक्तिबोध के तो काफ़ी चर्चे होते होंगे, मतलब थोड़ा अपने। मैं 86 में था शायद, 86, 87। तो उस समय ये आई थी नई अल्ट्रा लेफ्ट पार्टी, कौन सी थी? एसएफआई आई थी उस समय। तो आयशा पॉपुलर होनी थी, उसका मेरे ख्याल से जो प्रेसिडेंट था वो हमारा जर्नलिस्ट ही है, क्या नाम है उसका, नाम भूल गया, मेरा क्लासमेट था वो। मैं आई वॉज इन सेंटर ऑफ पॉलिटिकल स्टडीज़। तो नहीं, वो जेएनयू बहुत अच्छा था वो टाइम,
बस मैं तो खैर इसी में मज़ा करता था, पैसे होते नहीं थे जेब में, 1 रुपये 80 पैसे में आपको खाना मिलता था वहाँ। तो यू कांट इवन बिलीव इट टुडे, 1 रुपये 80 पैसे में आपको चावल, सर वो गंगा राजमा। ढाबा तब भी हुआ करता था क्या? हाँ, तब भी होता था। हाँ, तब वो जो नीचे वाले इसमें एक था डाउन कैंपस, एक था अप कैंपस। यहाँ पे अब MEA कुछ मिनिस्ट्रीज आ गई है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव वो हो गया ना, IAS की कुछ ट्रेनिंग के लिए हो गया सेट। कुछ मिनिस्ट्रीज आ गई है नीचे, वो वहाँ हमारी क्लासेस होती। ओह, हाँ, अप डाउन कैंपस। और एक बस होती थी 666 जो हमें ऊपर ले आती थी अप कैंपस, वहाँ पे लाइब्रेरी थी, वहाँ लाइब्रेरी में पढ़ते थे, और डाउन कैंपस में हमारी क्लासेस होती थी। और हम वॉक करके भी चले जाते थे बीच जंगल में से, एक जंगल सा था, बीच में चले गए, ओपन थिएटर था वहाँ पे बना हुआ, पता नहीं अभी भी है। तो हम आखिरी में सर एक एक चीज़ आपसे जानेंगे। आपके जीवन में मतलब 35 सालों में बहुत अच्छी स्टोरी आपने की है। अभी प्रतीक सर ने उसका जिक्र किया जब CBI के जो डायरेक्टर थे उनको। कोई एक स्टोरी जो मतलब जिसको करते हुए आपको लगा था, हम ये तमाम रिपोर्टर से अभी पूछेंगे, हम सब में बहुत लोग नए हैं, पर 5-6 साल में 4 साल में हमने कुछ तो किया होगा जिसको देख के लगे कि हाँ मैंने किया। तो कोई एक स्टोरी जब आपने किया हो और उस रात नींद बहुत अच्छी आई होगी, आज आज तो मैंने जो करना था कर दिया। नींद नहीं आती अच्छा करके। नहीं, यू आर एज गुड एज योर लास्ट स्टोरी, समझे। पहले तो रिपोर्टर का ये सबसे, आपकी जो लास्ट स्टोरी है तो वही, उसके बाद फिर दोबारा से अंत शुरू। लेकिन हाँ, मैं स्टोरी वाइज एक स्टोरी जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हाँ। थी, बहुत आई थिंक मैं आपको अभी तो कैमरे में बात कर रहा हूँ, पहले बता चुका हूँ, मध्य प्रदेश की थी। तो ये मध्य प्रदेश में मुझे शेखर गुप्ता ने भेजा था। वहाँ पे एक था ना पॉलिटिशियन जुनेद करके, जो रिकन्वर्जन करवाता था। जुदेव क्या? जुदेव सर, जुदेव, हाँ जुदेव, अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश था। हाँ अनडिवाइडेड दिलीप मध्य सिंह प्रदेश जुदेव, था। हाँ। हाँ, वो जुदेव था, वो क्या करता था, रिकन्वर्जन, जो हिंदू क्रिश्चियन बन गए हैं उनको वापस लाना, घर उसकी वापसी। स्टोरी के लिए भेजा उसने मुझे। हाँ, घर वापसी। घर वापसी। उस दौर की घर और वापसी। हाँ, तो ये 99 की बात है, शायद 99 की बात है। तो मैं ट्रेन से जा रहा था, हम सेकंड AC में थे और फर्स्ट AC में एक CBI का ऑफिसर था। तो हम ऐसे गेट पे खड़े थे, हवा ले रहे थे, तो CBI का ऑफिसर भी वहीं पर आ गया। तो उससे ऐसे बात करने लगी, कहता आओ मेरे में बैठते हैं, मैं फर्स्ट क्लास में बैठते हैं वहाँ पे। मैंने कहा चलो फर्स्ट क्लास देख लेते हैं। बैठ गए उसके साथ। तो ऐसी बातों बातों में एक ऐसी स्टोरी आई, मतलब कि मैं सोशियोलॉजी का भी स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैंने वर्रियर एल्विन पढ़ा है। वर्रियर एल्विन एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने बहुत काम किया है इंडियन ट्राइब्स में। उन्होंने कई चीज़ें, उनकी पॉलिसी, नेहरू के दोस्त भी थे, नेहरू ने इनकी पॉलिसीज़ भी अडॉप्ट की थी कि ट्रैवल के लिए एक बेल्ट बना दी जाए, पार्क जिसे कहते हैं, ट्रैवल बेल्ट, जिसमें डेवलपमेंट अगर करना है तो वो सोच समझ के उनकी लाइफ को इंटीग्रेट करना है, उनकी लाइफ को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो ऐसे करके उसने किया था। तो उसने एक मुझे पता चला उससे बातें करते करते कि वर्रियर एल्विन का बेटा है और उसकी वाइफ है। तो वो पता चला मुझे, मैं एकदम से हैरान हो गया। मैंने कहा ये मेरा फेवरेट एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। और वो क्या करता था, उसने एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करके मेथोडोलॉजी डेवलप की थी। उसका मतलब ये था कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, कि आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करो विदाउट नोइंग द सब्जेक्ट कि तुम उसको स्टडी कर रहे हो। तो उसने सेक्सुअल बिहेवियर स्टडी किया था ट्राइबल्स का। ही गॉट मैरिड टू मैनी ट्राइबल वुमेन, और उसने उनका सेक्सुअल बिहेवियर वो करके उन्होंने उसके ऊपर किताब भी लिखी है, जो आपको डी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मिलेगी। ठीक है। तो बट इट्स अ फैक्ट कि उन्होंने 2-3 लोगों से मैरिज की थी। फिर उसके बाद ये ही वेंट टू नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो, वेयर ही मैरिड अनदर ट्राइबल पर्सन। तो अब जब जैसे मुझे पता चला, मैंने कहा भाई मुझे तो उसको सपोर्ट करना है। वो कहते उसकी कोई दुकान होती थी, फिर मैं भूल गया, जुदेव को भूल गया मैंने कहा जुदेव का तो एक करके ऐसे ही भेज दूंगा, लेकिन मुझे इसको ढूंढना है। मेरे को स्टोरी वहाँ दिखी। तो मैं था कहाँ, जबलपुर में ये कार्यक्रम हो रहा था। जबलपुर से कोई 350 किलोमीटर। अब वो लंबी कहानी कैसे, मैं आधा तो DM के ऑफिस में, मेरे को याद है 3 घंटे बैठे थे, क्योंकि वो उसकी दुकान भी बंद कर ली थी। तो उसको ढूंढने के लिए कि वो अभी कहाँ पर है, वो 350 किलोमीटर दूर किसी गांव में जो ट्राइबल का है, वहाँ पे
थे, तो मैं गया और फिर वो मैंने स्टोरी की कि उस ट्राइबल वुमन शी वाज इन एब्जेक्ट पॉवर्टी, लिविंग इन एब्जेक्ट पॉवर्टी। तो उसके बाद मैं उसका बेटा से बात किया, तो उसे उसका डिवोर्स हो गया था, जो भी था, तो उसने वो अपनी स्टोरी बताई। उसने अपनी, जब वो ट्राइबल क्वीन थी, तो उसकी उस टाइम की फ़ोटो और उसकी इस टाइम की फ़ोटो, ठीक है, वो दोनों फ़ोटो ली मैंने, वो मेरा फोटोग्राफर साथ में था, तो उसने फ़ोटो ली दोनों की दोनों। उसके बाद उसकी वर्रेर एल्विन के साथ बॉम्बे में ताज होटल में घुसते हुए की फ़ोटो। हाँ, वर्रेर एल्विन उसको एम्बेसडर गाड़ी चलाना सिखा रहा है, उसकी फ़ोटो। वर्रेर एल्विन और नेहरू से मिलते हुए की फ़ोटो। एंड नाउ लिविंग इन एब्जेक्ट पॉवर्टी, एक बड़ी झुग्गी झोपड़ी में, बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट जो। तो वो मैंने स्टोरी की थी जिस पे मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिला था प्रेस क्लब की। तो लोगों ने कहा भैया आज तो बस पूछो मत क्या स्टोरी। वो हॉलीवुड, उनको हॉलीवुड प्रोजेक्ट लगा कि एक ये स्टोरी मैंने की थी उस समय, और सिर्फ उसकी कोसी, उसका नाम था कोसी की स्टोरी, और पिक्चर के साथ। तो और ये फ्रंट पेज में एक्सप्रेस में एंकर आया था। और प्लस उसके बाद इसने क्या नाम, बीबीसी ने इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। तो ये स्टोरी मेरी मतलब कि मुझे अपनी सभी स्टोरी में ये स्टोरी बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज द वे आई गोट दिस स्टोरी, वो बड़ा जुदेब भी किया, लेकिन जुदेब का अलग से सेकंड हो गया। वो सेकेंडरी हो गया, ये मेरा पहला हो गया। प्रतीक सर, जब मैं न्यूज लॉन्ड्री में, सर याद है आपको वो एक लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो कि ये ईवीएम हैक होते हैं करके, हाँ हाँ हाँ, वो एक कपिल बंदे सिब्बल को भी वहाँ थे बिठाया आई था, थिंक। और उसमें कपिल सिब्बल ही पहुंच गए थे। तो वो उसको ना पूरा हमने डिकोड किया था कि मतलब वो बेसिकली पूरा फर्जी मामला था, और लास्ट में हम वहां तक पहुंच गए थे कि एक फोटो भी मिल गया था मेरे को उसमें, जिसमें कपिल सिब्बल, सैम पिट्रोदा, ये जबलपुर के कौन से वो जो राज्यसभा एमपी है कांग्रेस के, नाम भूल रहा हूँ मैं, विवेक तनखा, और वो बंदा खड़े हैं यूएस में। तो वो उसको डिकोड करने में बहुत मजा आया था, मतलब कि वो असली असली जानने में, क्योंकि उसने एक ऐसी कहानी बनाई थी ना, तो वो एक मतलब अच्छा लगा था वो स्टोरी करने में। और फिर छत्तीसगढ़ में जो स्टोरी किया था पूरा, वो जो ट्राइबल्स के ऊपर जो उनको जेल में डालते हैं जिस तरीके से, मतलब फेक केसेस में, तो वो दो स्टोरीज करने में को काफी मजा आया था। शिव भाई, अफसर ने बोला कि रिपोर्टर इज एज गुड एज द लास्ट स्टोरी। तो लास्ट स्टोरी की हमारे पास अभी उतनी बताने के लिए है नहीं। हाँ, मेरे पास अब 1.5 साल से रिपोर्टर हूँ मैं। रिपोर्टिंग पहले कभी किया नहीं है मैंने, तो कुछ ज़्यादा बताने के लिए है नहीं। बट लास्ट जो स्टोरी है राजस्थान इलेक्शंस के, जो व्हाट्सएप पे स्टोरी किया था राजस्थान बीजेपी का, सोशल मीडिया मशीनरी, व्हाट्सएप मशीनरी, कितने 40,000 व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उस स्टोरी में थोड़ा टाइम लगा था। मैं स्टार्टिंग जब गया था तब से मैंने डिसाइड किया था कि ये स्टोरी मेरे को करना है। तो जहाँ जहाँ मैं गया उसी स्टोरी पे काम करता भी रहा मैं। उसके अलावा और भी स्टोरीज किया मैंने। तो वो एक स्टोरी था, वो दिखाता है कि बीजेपी का व्हाट्सएप ग्रुप जो मशीनरी कितना बड़ा है। कांग्रेस का तो अभी स्टार्ट भी नहीं है, बेबी स्टेप्स ले रहे हैं वो तो। और उसमें क्या क्या, किस प्रकार के हेटफुल कंटेंट, इस्लामोफोबिक कंटेंट, कैसे कैसे लोग रिसीव करते हैं, किस प्रकार के कंटेंट, और कैसे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं जब वोटिंग करने जाते हैं। तो वो एक अच्छा स्टोरी था। उसमें 4 डिस्ट्रिक्ट को मैंने कवर किया था। मोस्टली यूथ से बात किया कि वो जो उन ग्रुप के मेंबर हैं। मैं भी कुछ ग्रुप्स थे, 10-12 ग्रुप थे जिसका मैं मेंबर बनाया गया था। भाजपा नहीं बनाया था। भाजपा के उसका फोन चेक करो, बहुत में मेंबर है ये भी। भाजपा के ऑफिस जाके फिर मैंने कहा कि एक स्टोरी करना है व्हाट्सएप पे, अच्छा काम कर रहे हैं आप। तो मैंने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या क्या आप, किस प्रकार कंटेंट आप निकालते हैं। तो वो काफ़ी जेनरस थे, उन्होंने मेरे को ऐड भी किया, और वो एक अच्छा स्टोरी था जो लेटेस्ट स्टोरी बता रहा हूँ। बाकी तो एक उससे पहले मैंने जगदीप धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट पे जो प्रोफाइल किया था, वो मेरे को अच्छा लगा उस पर काम करके। उस पर टाइम भी दिया गया था, मतलब आई थिंक 20 दिन का टाइम था। तो 20 दिन तो तुमने कर लिए थे। Sir, Shiv is asking for more time for another story. So वो जगदीप धनखड़ उस समय तक तो काफ़ी लोगों ने स्टोरी कर चुके थे प्रोफाइल, जब वो वाइस प्रेसिडेंट बने थे। जब वाइस प्रेसिडेंट बने थे जगदीप धनखड़, उस समय लोगों ने कर दिया था मोटा मोटा प्रोफाइल। बट वो उसमें उसके अलावा भी उनके ना 500 वर्ड्स में आप किसी के जीवन को समेट नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर डिजिटल मीडिया का एक है कि आप लिख सकते हैं, अगर स्टोरी इम्पोर्टेंट है
और आपको लगता है कि इतना बड़ा होना चाहिए, तो उसमें काम किया मैंने। उसमें अच्छा लगा काम करके। वो काफ़ी जगह घूमा भी था। मैं जयपुर गया था, झुंझुनू गया था, जो जगदीप धनखड़ का जहाँ पे गांव है, उनके गांव हवेली, वहाँ के लोगों से बात करूँ, उनके जो साथ में जो लोग पढ़े हैं उसमें 5वीं 6वीं में वहाँ उसके गांव में, और फिर यहाँ पे ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट में, और इनके जो पीछे का जो जिनका कार्यकाल है। अवधेश, आपका? मैंने बनारस से एक स्टोरी की थी। BHU का एक स्टूडेंट था जो मतलब वो गायब हो गया था यूनिवर्सिटी के गेट से। उसको पुलिस उठा के लेके गई थी, और पुलिस जब उठा के ले गई थी किसी ने कंप्लेंट की थी, क्योंकि वो दिसंबर की सर्द रात थी, तो वो पैर डाल के एक नाले में बैठा हुआ था, तो हो सकता है कुछ उसके साथ दिक्कत उस समय। तो जब पुलिस उसे उठा के लेकर चली गई, तो मतलब वो बच्चा गायब हो गया, घर से कनेक्टिविटी खत्म हो गई, क्योंकि उसकी डेथ हो गई थी थाने के अंदर, और पुलिस ने उसको डिस्पोज कर दिया था कहीं पर ले जाके। तो ये पता ही नहीं था वो लड़का कहाँ गया। तो उसके फादर जब आए, MP की फैमिली थी वो, जब वो आए उसको ढूंढा, उसके जगह जगह पर्चे लगाए, पूरे बनारस में इसको ढूंढ रहे थे, तो लड़के का पता नहीं चल रहा था। फ़ोन उसका बंद हो गया था, पुलिस ने अपना रोल ख़त्म कर लिया क्योंकि उसको उठा के। तो एक छोटे से मैसेज से पता चला था सर कि मतलब जब किसी को 100 नंबर करके बुलाते हैं ना, तो उसके पास नोटिफिकेशन जाता है। तो जिस लड़के ने उसको उठवाया था कि मतलब देखिए परेशान है, 100 नंबर की गाड़ी लेके गई थी, तो उस लड़के ने जब वो पोस्टर देखे, उसके फादर ने जब पोस्टर लगाए पूरे बनारस में कि मेरा बेटा गुम हो गया है, इतने दिन से मिल नहीं रहा, तो उस लड़के ने देखा यार ये तो मतलब मुझे लग रहा है इस लड़के को कोई देखा है। तो वो लड़का उससे मिला और उसने जाके दिखाया कि इसकी तो मैंने मतलब 100 नंबर पे कंप्लेंट करके इसको यहाँ से उठवाया था। तब जाके पूरा वो केस खुला था। मतलब उसके बाद अब करीब 2-3 साल के बाद जो है वो पुलिस वालों पे ये हुआ कि मतलब वो भी, अब जब हमने स्टोरी की तो उसके बाद ये फॉलोअप हुआ कि जो CBCID की टीम लगी थी, उसने कहा कि मतलब मेरी बात हुई थी अधिकारी से, तो उन्होंने बताया था कि मतलब जब वहाँ टीम पहुँची बनारस में, तो उन्होंने कहा कि मुझे उस समय की 15, जब वो उस एप्लीकेशन के साथ मुझे 15 जिनकी वो लिस्ट चाहिए जिनकी पूरे यहाँ पे डेथ हुई है। तो करीब 15 लोगों की डेथ हुई थी इस तरह से, जिसमें 14 लोगों को किसी न किसी ने एक्सेप्ट कर लिया था। उसमें एक बॉडी थी जिसको नहीं पहचाना था, तो उसको ऐसे ही रखा हुआ था, उसका DNA रखा हुआ था। तब उसके फादर का और उसका DNA मिलाया, और तब जाके वो पूरा केस खुला। वो पुलिस कस्टडी में मरा था? हाँ सर, पुलिस कस्टडी में था, पुलिस कस्टडी। तो ये बहुत मतलब उसको इंटरेस्टिंग मुझे याद है करने में उड़ा। एक अभी हाल ही में स्टोरी और करी मैंने, जो मध्य प्रदेश से, तो मतलब कैसे एक मंत्री ने एक वहाँ के लोकल रिपोर्टर के अगेंस्ट में 11 FIR दर्ज करा दी। निपट गया, मंत्री हार गए। मंत्री निपट गया, 22,000 करोड़ वाला वो सर मिनिस्टर ने 11 FIR दर्ज करा दी मात्र 5 दिन के अंदर, 4 से 5 दिन के अंदर। मतलब उसके लॉयर ने मुझसे बात करने के लिए मना कर दिया, उसकी फैमिली ने बात करने के लिए मना। तो इतना मुश्किल हो रहा था कि कैसे FIR निकाले जाएँ। तो प्रतीक सर की मदद ली, बाकी जो लोकल के दोस्त हैं वहाँ से, BBC के कुछ वहाँ के एक लोकल जर्नलिस्ट की मदद ली। काफ़ी मदद लेने के बाद तब जाके वो FIR निकली। अब मुझे पता चला कि FIR 11 ही नहीं थी, 21 FIR दर्ज हो चुकी है उसके अगेंस्ट में। उसको स्टोरी को करने में भी अच्छा लगा, टाइम तो लगा, लेकिन वो पूरी FIR निकालना जो पूरा प्रोसेस था बड़ा टेस्टिंग था। मैं केरला में था, जर्नलिज्म कर रहा था IMC कोट्टयम में, और फ्रीलांस की एक वो लग गई थी, पैसा मिलता था अच्छा 4,500 रुपये पैसा मिलता था एक स्टोरी के लिए, रुपया मिलता था। तो पैसा तो नहीं मतलब पैसा भी आता था, पॉकेट खर्च आ जाता था ना, तो मैं हर महीने 2 एटलीस्ट स्टोरीज पब्लिश करने की कोशिश करता था। तो वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर था, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ता था। तो उस टाइम पे केरला में 2018 में फ्लड आया था, और आई थिंक 2019 की जनवरी से स्टार्ट हुआ है, फरवरी तक लगभग 3-4 फार्मर्स का सुसाइड हुआ था। और न्यू इंडियन एक्सप्रेस की सिंगल कॉलम एक न्यूज़ आता था हर रोज़, मतलब हर रोज़ नहीं, जब भी होता था। तो मैं ऐसे ही न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते उसको नोट करके जा रहा था कि हो क्या रहा है। फर्स्ट तो नोट नहीं किया, सेकेंड आने से मैं नोट करना शुरू किया। उसी टाइम 2019 इलेक्शंस आ गया, तो एक अच्छा फ्रीलांस प्रोजेक्ट आया था, इलेक्शन ऑन द हिल्स इलेक्शन ऑन द व्हील, जहाँ पे यू कैन गो एंड थोड़ा वीडियो करो एंड रिपोर्ट करो। 101 पैसा दे रहा था, फर्स्ट पोस्ट के लिए रिपोर्टिंग हो रहा था, एंड द मनी वॉज 8,000 रुपीज़ फॉर 1 स्टोरी। तो मुझे लगा ये स्टोरी मैं पिच कर देता हूँ, तो मैंने वो स्टोरी पिच कर दिया। और मेरी क्लासमेट थी, उनको भी हम दोनों ने ज्वाइन किया कि चलो करते। ये हुआ था इडुक्की में, और लैंग्वेज का भयंकर बैरियर था, क्योंकि गाँव में सुसाइड्स हो रहे थे, फार्मर्स थे, वो लोग मलयालम पे बात करते हैं। तो हम लोग कॉन्टेक्ट मिला के मतलब कि वहाँ पे कौन है, एक रिपोर्टर मिल गया था, 2 रिपोर्टर मिला था लोकल। तो उन लोग को लेके पूरा स्टोरी को सेज किया था 4-5 दिन का। ये 8,000 जो मिला था ना, 5,000 वो ट्रैवलिंग पे खर्चा हो गया था, 3,000 का प्रॉफिट, मतलब क्या बोलो पॉकेट का।
अच्छा पॉकेट मनी मिला। अच्छा पॉकेट मनी मिला था। तो बेसिकली उस स्टोरी को करके इसलिए पसंद आया था क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बहुत था। तो एक घर में हम लोग गए थे, उस टाइम पे हमारे साथ लोकल रिपोर्टर नहीं था, तो मेरे क्लासमेट को जो मलयाली था उनको एक फोन पे हम बोलते कि ये सवाल है और रिकॉर्डिंग होता रहता था, और ये उसको सब्जेक्ट को फोन देते थे, सी ट्रांसलेट इट टू मलयालम। देन उसको रिकॉर्डिंग को बाद में जाके पूरा ट्रांसलेट किया था और स्टोरी पूरा निकला था। आई थिंक उसी मार्च तक आ गया था। और बाद में उस स्टोरी में मतलब इसलिए भी अच्छा लगता है, बाद में उस स्टोरी का अच्छा रिकॉग्निशन मिला था। इमका में वो एग्रीकल्चर रिपोर्टिंग मिला था। कितने पैसे मिले तब? तब 50,000। आम के आम गुठलियों के दाम हो गए प्रतिश के तो। मुश्किल वक्त में हाँ, मतलब ये अच्छा था, एक्सपीरियंस अच्छा था। आई वुड नॉट से कि बेस्ट स्टोरी, लेकिन अच्छा लगा था। मतलब बसंत आपका? मुझे एक स्टोरी करते हुए जो मज़ा आया था और प्रोसेस उसका बहुत बढ़िया था। मैं, अवधेश और हमारे पूर्व साथी अश्विन प्रेस क्लब से जा रहे थे मयूर विहार अपने घर। तो हम लोग मंडी हाउस में रुके। मंडी हाउस में हम लोग ऐसे ही रात के 11 बज रहे थे, तो हम लोग ऐसे घूम रहे थे। तब तो वहाँ डीडी का ऑफिस है, तो एक होर्डिंग्स दिखा 2022 का लोकसभा विधानसभा चुनाव था यूपी का, उससे पहले का। क्या बोले यूपी उसका शो का नाम था। और मतलब जब पॉलिटिकल होर्डिंग्स बनते हैं किसी भी चैनल के या कोई प्रोमो बनता है, तो उसमें जो राजनीतिक दल वहाँ के महत्वपूर्ण होते हैं उनकी तस्वीर होगी, उनका झंडा होगा या उनके नेता का तस्वीर होगी। हमने देखा कि जो एंकर हैं उनके जस्ट पीछे योगी सरकार थे, उनकी योजनाओं का होर्डिंग्स लगा था। ये प्राइमरी स्टोरी थी। हमने कहा कि फ़ोटो खींच लेते हैं, पूरा भरा हुआ था, 10-12 फ़ोटो खींचा। हमने कहा एक स्टोरी कर देंगे कि गाड़ी घुमा घुमा के तुमने बहुत फोटो खिंचवाए थे तो हमने सोचा कि एक स्टोरी कर देंगे कि कैसे डीडी न्यूज़ अपने होर्डिंग्स में बीजेपी की योजनाओं का प्रचार कर रहा है। जब हम लोग आए उससे पहले हमने सोचा थोड़ा सर्च कर लेते हैं शो कैसा जा रहा है। फिर मैंने प्राइमरी आइडिया वहीं मैंने एडिटोरियल में पिच कर दिया कि होर्डिंग्स में। फिर ऑफिस से भी वहीं आया कि शो देखो। जब हमने शो देखना शुरू किया, पहला मेरठ का शो मैंने ऐसे कर लिया, तो उसमें जो पहला आदमी आया उसका नाम मैंने देखा, उसका व्यापारी लिखा हुआ था। और जब सर को तो ज़्यादा इसका अनुभव होगा, जब आप कोई खबर देखेंगे ना, रिपोर्टर के बोलने और सामने वाले के बोलने से एक रिपोर्टर का दिमाग समझ जाता है ये प्लांटेड है या ये नोन है। मतलब आप अचानक से जाकर किसी से बात करेंगे तो उसकी भाषा और आप रिपोर्टर की जैसे एंट्री होगी वो पता चल जाता है कि ये पहले से। तो मैंने कहा चलो गूगल मार लेता हूँ इनको, जो भी नाम था। उनको बताया गया था व्यापारी, उधर गूगल में बीजेपी नेता दिख गए। मैंने कहा अच्छा, ये तो अच्छा मिल रहा है। फिर मैंने उस शो में 12-13 लोग थे। मैंने मेरठ वाले में मैंने सर्च मारना शुरू किया, कहीं अखबार में कत्र, कहीं वेबसाइट में मिल रहा है कि बीजेपी व्यापारी संघ के अध्यक्ष फलाना, वो उधर दिख रहे हैं व्यापारी, सिर्फ व्यापारी मामूली। कहीं लिखा हुआ स्थानीय नागरिक, वो उधर दिख रहे हैं बीजेपी जिला स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष। इस तरीके से हमने लगभग 15-16 एपिसोड को, मतलब जितना उन्होंने यूपी में किया था हमने एक एक एपिसोड को देखा। इवन मुझे याद है इंटरेस्टिंग था, जब यहाँ जौनपुर में एक जलेबी की दुकान थी, वो जलेबी की दुकान में शायद उनका रिपोर्टर का नाम भूल रहा हूँ, वो घुसती हैं और एक आदमी अंदर से बाहर आता है और वो बीजेपी की जम के तारीफ करता है। जब मैंने पता लगाना शुरू किया तो बीजेपी के जो स्थानीय एक बिजनेसमैन थे जो मुंबई में रहते थे, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, उनके फैमिली का, मतलब उनके परिवार का बंदा था। तो हमने इतना मजा आया कि हम एक एक पूरे शो की आइडेंटिटी निकाल ले गए। और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि हमारी स्टोरी पब्लिश होने के बाद क्या बोले यूपी जो शो था वो रोका गया, उसके होर्डिंग्स डीडी न्यूज़ के आसपास जितने थे सब हटा दिए गए जब हमने स्टोरी की। स्टोरी पब्लिश होते सब हट गया। उसको करते हुए मज़ा आ रहा था, मतलब जब होता है ना कि ये मिल गया, अरे ये यहाँ से मिल रहा है। उसके बाद हमने मतलब मज़े ले लेके 3 दिन लगा, पर वो बेसिक था। हमने ऐसे उतरे थे टाइम पास करने के लिए मंडी हाउस में, लेकिन दिखा और स्टोरी हो गई। तो शो करते हुए बहुत मज़ा आया था। तो अब हम अपने पॉडकास्ट के आखिरी चरण में हैं और आपको लगा, आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये जो हमारा 300वां एपिसोड था और 300 पूरा करने में हमें 3-4 साल लगे। 5 साल तो मुझे ही होने जा रहे हैं न्यूज़ लॉन्ड्री में, तो 5 साल से ज़्यादा ही लग गए। तो हम ये पॉडकास्ट ऐसे ही जारी रखेंगे। और आज के पॉडकास्ट में हमने रिपोर्ट पे कम बात की। जो तमाम लोग जर्नलिज्म में आना चाहते हैं, आ गए हैं, उनके लिए भी हमने काफ़ी इंसाइटफुल और बात की। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। जाते जाते एक बात फिर से याद दिला दें, और हमारे साथी कुछ और जोड़ना चाहें अपने सब्सक्राइबर से, जो बात करना चाहें, जो पाठक हैं, दर्शक हैं, कि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता। आप तमाम अब देखिए कि लाखों करोड़ों का विज्ञापन आता है। आप देखिए कि अभी आज ही अखबार में देख रहा था तो यूपी सरकार का विज्ञापन, तमाम सरकारों के विज्ञापन से भरे हुए हैं। हरियाणा सरकार तो रोज़ विज्ञापन देती है। उत्तराखंड सरकार का आप देखिए कि मेट्रो में मैं एक डब्बे में था जहां मतलब एक बैठने
3 जगह प्रधानमंत्री मोदी पार्वती कुंड पे हैं और एक लाइन ही लिखा हुआ है कि जो भारत को देखना चाहता है उत्तराखंड जरूर आए। तो इतने पैसे मिल रहे हैं अखबार चैनलों को, लेकिन न्यूज़ लॉन्ड्री किसी से पैसे नहीं लेता। तो आप हम पे अपना भरोसा बनाए रखें और न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें। आप में से कोई कुछ कहता है तो कहना चाहता है तो ज़रूर कहे। केक तैयार है, हमारे साथी केक प्रशांत केक ले खड़े हैं। 300 मैं इतना ही एपिसोड कहूँगा कि ये जो पॉडकास्ट है ये वीडियो और ऑडियो दोनों में उपलब्ध है और यहाँ सिर्फ न्यूज़ लॉन्ड्री की स्टोरी पर ही बात नहीं होती, जो हफ्ते की इंडस्ट्री में बहुत अच्छी स्टोरियाँ होती हैं हम उन पर भी चर्चा करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए और ये जो पॉडकास्ट है इसको सुनना चाहिए और इससे रिपोर्टिंग के साथ साथ जो नज़रिया है देश में दुनिया में क्या चल रहा है उन तमाम मुद्दों पर चर्चा होती है, तो देखा जाना चाहिए। आई थिंक स्टोरी में तो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन आई जाती है जी, तो आप लोगों को ज़्यादा डिस्कस करना चाहिए। मेरे ख्याल से आप लोग करते भी होंगे कि आप बिहाइंड द सीन जी बिहाइंड द सीन नहीं पता ना कि वो स्टोरी मिली कैसे। जैसे अभी आप बता रहे थे, जैसे मैंने बताया, बिहाइंड द सीन की स्टोरी मिली कैसे। ऑब्वियसली यू कैन नॉट नेम योर सोर्सेज, यू डोंट नीड टू नेम योर सोर्सेज, लेकिन ये भी एक प्रोसेस, बहुत अच्छा प्रोसेस होता है और ये लोगों को पता चलता है। जितना भी मतलब कि हम जो हमको छुपाना है वो छुपाएंगे, हाँ लेकिन सोचते- बिहाइंड द सीन देना चाहिए एक। तो ये देखिए 300 एपिसोड है। इसको प्रशांत घुमा के अगर आप कैमरे पे दिखा सके, RWO 300 एपिसोड है और हमें उम्मीद है कि हम 500 एपिसोड भी यहीं करेंगे। हम तमाम लोग शायद बैठे मिले उस दिन आपको। तो आप लोग भी केक खाइए और जो भी आपकी शिकायतें हों, जो भी आपकी तारीफ़ हो, हमारे तमाम लोग सोशल मीडिया पे भी है, वहाँ भी आप दे सकते हो, हमारे ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। Journalism at News Laundry is powered by the public, because when the public pays, the public is served. Visit newslaundry.com/subscription and pick a payment plan of your choice. Pay to keep news free and independent. Your future, and indeed the future of democracy, depends on it.